Welcome everybody. Welcome friends. I'm Hemant Agarwal, host and coordinator of webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in cooperative housing societies and will benefit both managing committee and the society members. It has very simple language articles, draft of application, वेबिनार वीडियोस मतलब पहले के जो वीडियोस वगैरह वेबिनार्स हुए उनके सारे के वीडियोस वहीं पे हैं। आज का हमारा जो लिफ्ट लॉज रिफॉर्म कमेटी है उसका मकसद है नेसेसरी चेंजेस लाने के लिए। इट इज़ फॉर ब्रिंगिंग इन नेसेसरी लीगल रिफॉर्म्स बाय फाइलिंग रिट पिटिशन और PIL in the High Court. Everybody is invited to provide their experiences, expert opinion, technical guidances, which will form base or summary for filing this writ petition and PIL in the High Court. Our PIL committee president is Mr. Mohammad Afzal. He is a social activist of having more than 40 years of experience in social activism in various fields. He was also our earlier speaker also. I invite him to proceed on this matter. I will request everybody once again to mute their speakers. Good evening, everybody. As you very well know, that we are constantly engaging with the managing committee and the lift maintenance contractor. Accidents हो रहे हैं और लोग भी हैं जो मैनेजिंग कमेटी को कंप्लेन करते हैं और उनके प्रॉब्लम्स बताते हैं पर्टेनिंग टू द लिफ्ट सेफ्टी, बट उनका क्या एक्सपीरियंस है वो हम चाहेंगे कि आप अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करें. As far as the government is concerned, we have previously experienced कि जब भी सेफ्टी को लेके कोई बात होती है तो इट इज यूजली वन साइडेड. जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो उनको शामिल नहीं किया जाता है कोई भी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स में. तो मैं चाहूँगा कि आप सब अपने अपने एक्सपीरियंस जो आपने फेस किए हैं, आपने क्या मैनेजिंग कमेटी को लिफ्ट को लेके कंप्लेन किए हैं, क्या उन्होंने मतलब एक्शन लिया है और क्या प्रॉब्लम्स जो सेफ्टी को लेके आए हैं. आई वुड लाइक पीपल टू कम फॉरवर्ड एंड शेयर द एक्सपीरियंस. हेमंत जी, क्या क्या सेफ्टी फीचर्स होनी चाहिए एंड अपना अपना ओपिनियन दे. Anybody wanting to discuss anything on today's matter, please? Mr. Ajay Popat, okay, please unmute your microphone. Good evening, everyone. Hemantji, thank you for this seminar, and Mohammadji. I was part of my society's managing committee just till about 2 weeks back. So, sir, ours is a 30-year-old building in Powai. Our building was constructed in 91. And we were aware that as per the MCGM, Municipal Corporation of Greater Mumbai law, that the buildings who have a lift whose life is 25 years and more, it's the expiry life of the elevators. So well before, and if something then happens, then the responsibility falls on the managing committee. So we had invited quotations from reputed lift manufacturers, and then in the AGM we presented the concept, and we were told to form a subcommittee, and the subcommittee was formed to look into what the managing committee had done in terms of inviting quotations, equating everybody, etc. But the subcommittee did not do anything for 3 years. So as a result, now we have completed 30 years also, and we have not done anything about our elevators. So we are worried. And when I was handing over charge to the new managing committee, I brought this to their notice, saying that we could be in difficulty in case if some untoward things happens because of outdated elevators and all. So we wanted to have some clarity on this particular matter.
from you. ફીવર રહે છે આજે 4th day છે પણ તો Okay, I'll request all friends to speak only on today's topic. That is, we are looking for data, inputs, ideas, your views, your suggestion on safety measures of the lift. आपके लिफ्ट में आपको ऐसा क्या लगता है कि आपके लिफ्ट में सेफ्टी मेजर्स क्या क्या होना चाहिए? हम उस संदर्भ में ही बात कर रहे हैं. Okay, Mr. Popat, please unmute yourself. Yes, please. Let me know what you require as a safety measure. What difficulty are you experiencing in your lifts? So we have to incur regular maintenance more than the usual because the elevators are old. They are more than 30 years old. Very often there are breakdowns at odd hours, and we have senior citizens living in our society, so there is a lot of hardship on account of this. Our biggest concern is that since as per our understanding the lifts have crossed their life, can there be any penal action taken against us, against the managing committee of the society for not changing over to new lifts or something? So these are our concerns. Why do you want to change? We thought it is as per the requirement. That is what we were told. लीगल रिक्वायरमेंट को थोड़ी देर के लिए साइड में रखो. आपको डिफिकल्टीज क्या आ रही है उसके अंदर? आपकी लिफ्ट पुरानी हो गई है, धक्का लग रहा है लिफ्ट में, या ऑड आवर्स में बंद हो जाती है, हाँ जी, मैंने वही कहा, दरवाजा खुल जाता है, या एग्जॉस्ट फैन नहीं है, वगैरह वगैरह. मींस ऐसी कुछ डिफिकल्टी बताएं. हाँ, वो तो मैंने बताया हेमंत जी कि we often face failures of the lift. Okay. And as I said, at odd times, जैसे मैंने कहा, there are senior citizens staying, so it becomes very difficult. लिफ्ट क्यों बंद हो जाती है आपके ऑड टाइम्स पे? Mechanical failures or electrical failures, part failures. So mechanical failure is a part of safety measures. Yes. In the lifts which we are discussing, there should be proper mechanical guidelines or measures so that failures do not happen. Right. So we have an AMC also with, for example, OTs. बट उसके बावजूद भी ये होते हैं, और कई बार क्या होता है कि लिफ्ट पुरानी हो गई तो पार्ट्स भी पुराने अभी मिलते नहीं है, 30 साल पुरानी है, तो कभी कभी फिर उसको रिपेयर होने के लिए भी टाइम लग जाता है, because they say that the parts are not available and then they charge very exorbitantly also for. आपको ऐसा लगता है कि सेफ्टी मेजर के लिए लिफ्ट के अंदर प्रॉपर एग्जॉस्ट भी होना चाहिए? एग्जॉस्ट है जी हमारे लिफ्ट में, और टेलीफोन भी होना चाहिए? हमारी वो ओपन केज लिफ्ट है and we are a 7-story building, so we don't think there is a necessity for a telephone. Okay, but सेफ्टी मेजर के हिसाब से आपको लगता है कि एग्जॉस्ट है, टेलीफोन है, फायर एक्सटिंग्विशर है, ये सब लिफ्ट के अंदर होनी चाहिए? हाँ जी, जैसे कई लोग कैमरास भी लगाते हैं, बिकॉज आजकल वो क्लोज लिफ्ट आती है, तो if there are some people inside and something happens, so there are cameras. Then there is also telephone to, in case if there is emergency. But since ours is an open cage lift, okay, तो ये सब चीजों का शायद उतनी जरूरत नहीं. एग्जॉस्ट की जरूरत है, एग्जॉस्ट चल रहे हैं. हम लोग जनरली बात कर रहे हैं. वी आर नॉट गोइंग टू बी गिविंग कंसल्टेंसी on or opinion on. Then I agree with you कि these are necessary. आपने ऐसा कंफर्म किया कि लिफ्ट में नॉर्मली हर जगह क्या क्या होना चाहिए? एक टेलीफोन की सुविधा होनी चाहिए, एक सीसीटीवी की सुविधा होनी चाहिए, हाँ जी, एक एग्जॉस्ट की सुविधा होनी चाहिए, हाँ जी, और फायर एक्सटिंग्विशर की सुविधा होनी चाहिए. ऐसा आपको क्या लगता है कि और क्या होना चाहिए? Then there should be, some bars or some handles which people can hold in case if they are feeling not well or something. So there should be something like that for the, those who are not well or those who are. ठीक है, तो ये 5वां पॉइंट हुआ. और कुछ आप रोशनी डाल सकते हैं? आपका तजुर्बा बताइए सब इसके अंदर. बस मेरा तजुर्बा तो यही है, not only for my building but generally यहाँ पे भी लिफ्ट सिस्टम्स हो. ठीक है. आप अगर हाई राइज में गए हैं तो आपको क्या लगता है? आपका लिफ्ट का डब्बा बंद है, चारों तरफ से मेटल डब्बा है. हाँ जी, तो आई थिंक देयर शुड बी एन ऑटोमेटिक सिस्टम टू ब्रिंग द एलिवेटर केज टू द नियरेस्ट फ्लोर एंड देयर शुड बी अ हूटर और एन अलार्म थ्रू व्हिच इट कैन बी ओपन्ड थ्रू एन एलन की और समथिंग. आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट ए सेफ्टी फीचर. एक ऐसा है कि एक लिफ्ट का डब्बा है, 5x5 का या 6x6 का एक डब्बा है लिफ्ट का, स्टील की है, चारों तरफ से बंद है,
दरवाजा भी स्टील का दरवाजा है, ऊपर भी बंद है और जमीन तो वैसे ही बंद है। तो 6 तरफा लिफ्ट का डब्बा बंद है और किसी कारणवश मेरी लिफ्ट फंस जाती है वहां पे और मेरे लिफ्ट में 6 जन मौजूद हैं। तो सेफ्टी के लिहाज से हमने ये 5 पॉइंट तो गिन लिया। हवा कहाँ से आएगी उसके अंदर? रोटेशन, एग्जॉस्ट फैन है। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे 35 फ्लोर की बिल्डिंग है। मिस्टर मोहम्मद, प्लीज नोट दिस थिंग व्हिच आई एम अबाउट टू एक्सप्रेस। अगर 35 माले की एक बिल्डिंग है तो जो लिफ्ट का जो शाफ्ट है ग्राउंड फ्लोर से लेके 36 माले तक, 36वें फ्लोर तक, उसके बीच में एक एग्जॉस्ट कहीं नहीं है। जैसे हमारे घर के दरवाजे खिड़की होते हैं तो हवा का आदान प्रदान हो रहा है, खिड़की से हवा घुस रही है, दरवाजे से निकल रही है या कुछ भी दूसरी खिड़की से निकल रही है। लिफ्ट का जो शाफ्ट है उसके अंदर तो कहीं फ्रेश हवा आने का प्रश्न नहीं आता। बिल्कुल। तो एग्जॉस्ट होने के बावजूद भी आपको फ्रेश हवा नहीं आई और लिफ्ट किसी कारणवश बंद हो जाती है, एक आधा घंटा बंद हो जाती है और उसके अंदर 6 आदमी ट्रैप हो जाते हैं। तो अपनी मानसिक स्थिति क्या होती है उसका अंदाजा लगाना है। यह अंदाजा से हमें सेफ्टी फीचर एनहांस करने में मदद मिलेगी और वो हम हाईकोर्ट के पिटीशन में हम उससे डालने की कोशिश करेंगे। यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट। तो इस पे आपका कोई टिप्पणी है, कोई कमेंट है तो मुझे बताइए बिफोर वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट फ्रेंड। व्हाट डू यू थिंक? I think there should be good ventilation in such cases. अगर lift में लोग trap हो गए हैं वो, so there should be enough ventilation through some device or through mechanism, and there should be an alarm and hooter. And as I said, के there should be an auto system जिसके कारण ये lift can go to the next floor, so that it can land at the next floor, and through the alarm system somebody can come and open it up. The discussion here is कि there is a shaft of approximately 400 feet, नीचे 35 ग्राउंड फ्लोर से लेके 36 फ्लोर तक, उसमें हवा कहीं आना जाना नहीं हो रहा है और आप एक स्टील के डब्बे में बंद हो 6 जन। अगर मानो वो स्टील का डब्बा यानी जो शटर है वो स्टील का नहीं होता, इनकोलैप्सिबल होता, जैसे पुराने लिफ्टों में होता था कि वो ग्रिल टाइप के होता था, तो हमने इसको खींच के बंद किया तो वो ओपन रहता था, तो उसके अंदर विंड का सर्कुलेशन होता रहता था। एनीवे, थैंक यू मिस्टर पोपट फॉर ज्वाइनिंग इन। वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट फ्रेंड। ओके, द लॉ सेज दैट यू हैव टू चेंज द लिफ्ट आफ्टर एवरी 20th year. Did you get it? Yes, sir. I got it. Yeah. Thank you so much, Hemant. There is a government directive also to that effect, that lifts have to be changed every 20th year because the lift lifespan is given only as 20 years. Okay, right. Sir, can I speak? Yes, ma'am. Please go ahead. Good evening, sir. evening, ma'am. Even Mr. Ajay can take they already have a maintenance contract with Otis. So Otis can definitely as to what needs to be done, which spare parts needs to be changed, and what are the major parts which are going to give difficulty in the future. So the maintenance contractor is the best person to highlight the issues and give a solution to their problems. Because just now they already have a contract with Otis. So the maintenance contract is with them. So it is the duty of the contractor also to highlight these points to the society and tell them as to what needs to be done with the old lift. हाँ जी, that What's is your not a take on problem, this, sir? madam. वो तो हमको बताते हैं. That is not an issue. We are getting good service from Otis. Only thing is that since the machine is 30-year old, तो आप समझिए कि कोई गाड़ी 30 साल पुरानी है तो वो कंपनी बराबर। उसके स्पेयर पार्ट भी बनाने कम कर देती है, बंद कर देती है. तो कभी-कभी Sir, हमको you ये can- मुश्किल होती है. You can tie up with them and ask them if they can give you a replacement. We have Or if- we have a comprehensive annual maintenance contract with them, so it includes service and spare parts both. So that's not our problem. So our problem is that the machines are outdated and we want to now probably change it. And ये जो discussions हो रही है तो we'll learn from it कि हमारे में safety features क्या-क्या होने चाहिए. So that is also our interest. Okay, Thank you, now we'll thank you, move Fatima on to ji. the next speaker. Yes, Thank you, Mr. welcome. Ajay, for joining us. Mr. Mohammed, you wanted to say something? I wanted to say
जैसे कि लास्ट टाइम भी मिस्टर अरुण अग्रवाल ने भी कहा था कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या कोई भी लिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दे कैन नॉट से कि भाई ये पार्ट्स अवेलेबल नहीं है. हो सकता है कि थोड़े टाइम लगे उसको आने में पार्ट्स, बट अगर उनके पास पार्ट्स नहीं है तो दे विल गेट इट मेड. जैसा कि देयर आर सर्टेन पार्ट जो लेथ मशीन में बनती है, और वो लेथ मशीन में बनती है तो वो उनके पास वो सुविधा रहती है कि लेथ मशीन वालों से मतलब इन्हें उस पर्टिकुलर पार्ट को रीडिजाइन करके मैन्युफैक्चर करके और बना के वो पार्ट को लगाए सो दैट द लिफ्ट स्टार्ट्स वर्किंग प्रॉपर्ली. हाँ जी, that's exactly what is happening. Yeah. I would like to add something more, Mr. Mohammed. Yes. अगर मेरी लिफ्ट 30 साल की हो गई है, अगर मुझे पार्ट्स नहीं मिल रहा है और नामी कंपनियां अगर ये बोल रही हैं कि पार्ट्स नहीं मिलेगा, और अगर मुझे तकलीफ हो रही है, मेरे बिल्डिंग में सीनियर सिटीजन्स रह रहे हैं, आने जाने में लिफ्ट की तकलीफ हो रही है, लिफ्ट जब मर्जी है बंद पड़ जाती है, इसका मतलब है लिफ्ट फेलियर के नज़दीक में आ गई है. हमारे पास कई वीडियोस हैं जिसमें ये साबित होता है कि लिफ्ट गिर गई, लिफ्ट में आग लग गई, लिफ्ट का दरवाजा अपने आप खुल गया. आई विल शो यू 1 or 2 वीडियोस इन ए फ्यू मिनट्स. अगर हम ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हैं और ज़िंदगी की अगर कोई कीमत है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम का खाना कम खा के अपनी सोसाइटी के लिफ्ट को बदली कर देना चाहिए लेटेस्ट लिफ्ट में, क्योंकि ज़िंदगी अगर निकल जाती है 4 लोगों की, गुजर जाता है आदमी, वक्त चला जाता है, तो वो जो 20-25 लाख रुपए की जो नई लिफ्ट आ जाती है 7 फ्लोर की बिल्डिंग की, द एवरेज कॉस्ट इज समवेयर अराउंड 2 to 3 लाख रुपीज पर फ्लोर ऑफ द लिफ्ट, अगर आप रेशियो कैलकुलेट करना चाहेंगे. तो वी कैन नॉट बी माइजर्स, कंजूसी नहीं कर सकेंगे हम इस चीज़ के लिए. तो ये एक चीज़ का ध्यान रखना हमारे लिए ज़रूरी है. और आई विल रिक्वेस्ट आवर कम्युनिटी प्रेसिडेंट टू नोट दिस पर्टिकुलर थिंग for our future reference also. Yes. Okay, we will switch on to our next speaker. Mr. Alex Norona also wanted to say something. Mr. Alex, if you are there, please unmute yourself. Good. My point here is the lift maintenance. What happens? You install the lift, it works well for a few times, which is supposed to work within 1 hour, 1 year, and then later in my building, I always see that the maintenance is the area where the managing committee normally goofs up. They want something which is cheap, and this is risking the entire building's members, because these guys who are coming in cheap, they are not qualified. The lift comprises of electrical and electronic parts, which these days are very sophisticated, but they have been handed over to people who don't even know basic electricals. They send teams for experiment basis, and the good machine is spoiled. So we need to have certain kind of qualification for the maintenance team. Likewise, if I can say, if a building has to be audited only by structural certified STR engineers, there has to be certain kind of certification of safety with these teams, so that they repair the machine, service the team with some kind of qualifications and some kind of checklist, and then hand over the checklist to the managing committee, which has to be inspected by any member if required, or rather they could even put up this checklist somewhere in the lift or something like that. So we know that, okay, it is being serviced on so and so day, and if it is not, I know it's very difficult for the managing committee to put this up, inside the lift or exhibit it anywhere, because they don't like such kind of exposure. That is my point. Mr. Alex, we would like to ask our friends to speak only about today's topic. Our today's topic is related only to safety measures and not regarding maintenance. Now, if you say Sir, मेंटेनेंस नहीं हुआ है, इसके लिए सेफ्टी मेजर्स कॉम्प्रोमाइज हुआ है या sure, रिस्क पे पहुंच गया है, तो यू प्लीज डिफाइन इट क्लियरली so that we note those points. Yeah, that is the, because if you buy a lift, as you mentioned, and nowadays there are beautiful lifts. I mean, really very good lifts. You have Schindlers, you have Otis, you have lot of good brands. But the point is, these lifts are installed, and later these lifts are not maintained.
So I did mention that the safety is at risk because you are giving this lifts to maintenance companies who are not qualified. So basically, it hits onto the safety because if they are not qualified, they bugger up something, and then the entire lifts is either Okay, I understand. Now tell me, this lift safety is compromised voluntarily or involuntarily? Before you answer, let me also explain. Is the lift safety compromised because of your own people, all the users, society, managing committee, and usage members, or is it compromised because of the AMC contractor or his spare parts or the lift itself? What is the true picture? Voluntarily compromised or involuntarily compromised? I will answer this in a different way. Normally, when the quotes are being invited, basically the quote which is cheapest is being picked up. Now, I'm not saying that cheaper quotes have qualified people, but if you really look at it can be cross-verified with the qualification of the technicians who are going to attend the repairs or the service of the lift. Basically, my point is there are unqualified people who come for AMCs. I myself have seen them because I stay on the fifth floor and the lift cabin is very close to my place. And when I go and see them working, it's literally a trial and error base. They can't. Okay, understood. Now, I would conclude from your talks that your own safety features, your own lift safety features is compromised voluntarily because you are looking for cheap stuff. One, you are looking to engage those AMC vendors who may not be registered with the energy department. Two, because if you engage standard companies like for example Otis है, Mitsubishi है, Chandelier है, वगैरह वगैरह और भी जैसे कंपनी हैं, they will give you a quote for 100 rupees. Now, when they give you a quote for 100 rupees, and if you try to bargain with them, they are not going to reduce even 10 NP. They are not going to ask you to pay 100 rupees and 10 paise because those rates are static, those rates are fixed. So it implies that these companies are working on certain safety oriented principles. Obviously, these principles are being compromised by the society, खुद से ही voluntarily, by engaging any era gera to do the needful, by engaging any price कि नहीं वो ओटिस वाला तो 100 रुपए मांग रहा है, ये पट्टा हमें 25 रुपए में करके दे देगा तो it sounds very good, तो इसी से करवा लेते हैं. But that time you did not consider, the society did not consider कि why is he giving 25 at the rate of 25 rupees and why that Otis fellow is giving at 100 rupees. So conclusively, the safety features were compromised by the users itself. Mr. Mohammed, your comment on this thing, please. Yeah, you see, during the PIL, previous PIL, this matter had come in the forefront, and I had suggested that the lift maintenance contractor should be at least a diploma holder in electrical engineering. So this matter was discussed, but subsequently it was not put in the orders or anything like that. So we will have to again take up this issue in front of the High Court and see what can be done. Please take it up. Mr. Mohammed Afzal also, अफजल साहब ऐसा है कि जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक एसोसिएशन है, उसके दायरे में काम करना है, जैसे एडवोकेट्स का एक बार काउंसिल है, उसी के तहत काम करना है, और जैसे इंजीनियर्स सिविल आर्किटेक्ट्स का एक एसोसिएशन है, उसी के तहत काम करना है. तो ये एसोसिएशन में सिर्फ और सिर्फ डिग्री होल्डर ज्वाइन कर सकते हैं एंड दे बिकम लायबल, विकारियसली लायबल ऑल्सो भी हो जाते हैं उसके अंदर. वंस द एसोसिएशन डिबार्स देम फॉर एनी मिसकंडक्ट या गैर कानूनी तरीके से काम करने से, तो देन दे कैनॉट डू देयर वर्क फर्दर. बट नाउ इफ इट टेक इनटू कंसिडरेशन ये डिप्लोमा होल्डर्स, तो दिस एसोसिएशंस डू नॉट एंटरटेन डिप्लोमा होल्डर्स. तो मेरा सुझाव ये है कि अगर ऐसा कोई इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स का एसोसिएशन है, मुझे आज के दिन पे जानकारी नहीं है। अगर नहीं है तो इसे बनाने पे जोर देना चाहिए, और जहाँ पे डिप्लोमा होल्डर्स का पत्ता कट कर देना चाहिए, बिकॉज वी हैव टू फिक्स देम एज विकारियसली लायबल। कि भाई आप काम कर रहे हो, मेरी सोसाइटी की लिफ्ट बिल्डिंग गिरती है, तो you yourself along with the society should be liable for damages and compensation to the life, to the property जहाँ पे ये मिस्चीफ हुई है। वो डिप्लोमा होल्डर बोलेगा मैं तो काम करके चला गया साहब, मेरे जितने नॉलेज में थे वो आई कैन नॉट बी डिबार्ड वगैरह वगैरह। सो दिस आई थिंक यू शुड take this suggestion into consideration while filing this petition in the court. Okay, somebody else wanted to. Hello. Mr. Kamble, please go ahead. हाँ सर, अभी लिफ्ट का ये प्रिवेंटिव मेजर्स आपने सजेशन के लिए बोले हैं, तो यहाँ लिफ्ट में इमरजेंसी ब्रेक जो देते हैं लेकिन उसका मेंटेनेंस नहीं कर पाते, तो कभी कभार जब लिफ्ट समझो ओवरलोड से या फिर कुछ इश्यू आ गए और वो रोप कट हो गई, तो इमरजेंसी ब्रेक एक्ट होते हैं, तो वो प्रिवेंटिव मेजर में उसका मेंटेनेंस करना चाहिए। और उसके साथ एक एआरडी एक दिया जाता है, पिछले टाइम उन्होंने बताया था, वो जो अपने होस्ट आए थे, तो एआरडी भी एक आए थे। हाँ, उन्होंने एक सजेशन दिया, वो एआरडी जो फ्लोर में जब एक बार कट हो गया समझो इलेक्ट्रिसिटी, तो वो एक नीचे फ्लोर या ऊपर की फ्लोर की तरफ वो लिफ्ट मूव हो जाती है, तो थोड़ा सा रिकवरी के लिए यानी अंदर के आदमी को निकालने के लिए वो एक अच्छा प्लान रहता है। और आपने बोले कि जो 10 माले का समझो बिल्डिंग रहेगा, तो वेंटिलेशन के लिए तो ऊपर की तरफ एक हाथ दूसरा इमरजेंसी एग्जिट भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वेंटिलेशन और इमरजेंसी एग्जिट ऐसा दोनों ऑप्शन उस लिफ्ट में होनी चाहिए। एआरडी का मतलब है ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस, am I correct, Mr. Mohammed? Okay. Yes. Okay. Now, automatic rescue device is mandated now. It does not cost much when in comparison with human life. एक आदमी गिरा तो हॉस्पिटल गया तो 2-4 लाख रुपए यूं ही खर्चे हो जाते हैं कम से कम मुंबई शहर में, लेकिन एक एआरडी इंस्टॉल करने से अगर कई लाइफ बच जाती है तो कई लाखों रुपए भी बच जाते हैं और उसका कामकाज भी नहीं रुकता है। तो आई थिंक एआरडी का एक क्राइटेरिया should be made mandatory, whether it is there in that BIS or no, that we need to check it out. Yeah, हेमंत जी, एक्चुअली ARD जो है हमारे पेटिशन के पश्चात ही इसको लागू किया गया था, बट आप जो बता रहे हैं कि BIS में इनकॉर्पोरेट हुआ है नहीं हुआ है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, बट इट हैज बीन मेड मैंडेटरी इन ऑल अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक मेरा विजुअल तजुर्बा बताया, जैसे कि आई गो मेनी प्लेसेस, तो आई सी कि अगर किसी का लिफ्ट का दरवाज़ा ग्रिल वाला है तो मैं ये देखता हूँ कि अगल बगल में जगह कितनी बची है। मानो अगर लिफ्ट का दरवाज़ा, लिफ्ट का जो कैबिन है, मानो अगर 6x6 का है ना, 6 विड्थ और 6 लेंथ में, तो जो लिफ्ट का जो शाफ्ट है उसकी चौड़ाई कितनी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 फीट 8 फीट का रखते हैं, मतलब 8x8 का होता है, उसमें एयर सर्कुलेशन होने की कोई संभावना नहीं होती है। सो द प्लान्स इन द BIS शुड मेक इट मैंडेटरी कि लिफ्ट का जो केज का साइज है उसका लगभग उतना ही बड़ा साइज लिफ्ट का शाफ्ट भी होना चाहिए, ताकि रोटेशनल एयर वहां पे सर्कुलेट हो सके। और एक था जो लिफ्ट का नीचे का पिट रहता है, नॉर्मली उसमें जो कचरा वगैरह जाके या फिर ये थोड़ा सा वहाँ केयर नहीं करते, तो अंदर की तरफ शायद मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन स्प्रिंग्स रहते हैं जो समझो कुछ इम्पैक्ट हो सके या फिर कोई तो प्रोविजन रहती है, तो वो एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में वो क्लीनिंग होना चाहिए।
ओके, सो एज ए सेफ्टी मेजर यू आर सेइंग कि लिफ्ट का जो पिट है उसमें से कचरा निकालते रहना चाहिए पीरियडिकली। तो वो एएमसी जो वेंडर आता है उसके चेकलिस्ट में ये ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। अगर आप लिफ्ट का इंस्पेक्शन रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें ऑलरेडी ये चीज़ मेंशन की हुई है। अब ये बात अलग है कि वो एएमसी वेंडर इस चीज़ को चेक करता है या नहीं करता है। यस, इनफैक्ट इसीलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बोला कि आपका जो एएमसी वेंडर है इट शुड बी मेड मैंडेटरी कि वो एनर्जी डिपार्टमेंट में रजिस्टर हो। आपका एएमसी वेंडर जो है या टेक्नीशियन है या कोई भी है तो वो मिनिमम टू मिनिमम डिग्री होल्डर हो और वो उसके रिस्पेक्टिव एसोसिएशन से रजिस्टर्ड भी हो, ताकि वो ये नहीं बोले, उसके लायबिलिटी फिक्स हो कि भाई आपने ये काम नहीं किया तो आप इसके कंज्यूमर कोर्ट में, बिकॉज ही इज अ सर्विस प्रोवाइडर and you are the service receiver, then he becomes liable। तो कहीं ना कहीं हमें कानूनी ढंग से इस चीज को ध्यान में रखना है। Anyway, thank you Mr. Srinivas Kamble for joining us। इनफैक्ट हेमंत जी, जैसे कि वो चेकलिस्ट ऑफ 43 डिफेक्ट्स जो हैं, एवरी सोसाइटी शुड मेक इट मैंडेटरी at the time of paying the fees that the inspection should be carried undertaken only as per the 43 defects। क्या हो जाता है कि वो 43 डिफेक्ट्स में बहुत सारे चीजें इंक्लूड की जाती हैं जो ये लोग कैरी भी नहीं करते हैं और ऐसी रैंडमली, मतलब यानी वो लिफ्ट के अंदर रूम में देख के और बस ओके कर देते हैं। तो अगर ये 43 डिफेक्ट्स अगर उन्होंने कंपल्सरीली अपना उसको लाइबल किया तो बहुत सारे प्रॉब्लम है और मेंटेनेंस के और सेफ्टी के रिजॉल्व हो सकते हैं। मिस्टर मोहम्मद, ऐसा है कि आई स्पोक टू फ्यू रेप्यूटेड कंपनीज, टेक्नीशियंस एंड इंजीनियर्स एज वेल, इसी संदर्भ में कि आप चेकलिस्ट को फॉलो करते हो कि आपके पास कोई चेकलिस्ट है? बोलता हाँ, यस वी हैव गॉट आवर ओन चेकलिस्ट विच इज फार मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन द चेकलिस्ट जो हमारा एनर्जी डिपार्टमेंट का प्रिस्क्राइब्ड है। अगर एनर्जी डिपार्टमेंट के पास में 40 पॉइंट का चेकलिस्ट है तो इन रेप्यूटेड कंपनीज के पास में 100 पॉइंट्स की चेकलिस्ट है। वो हर चीज़ को चेक करते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पे आपका ऊपर का लिफ्ट रूम है, लिफ्ट रूम में क्या क्या चीज़ें रखनी है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी डिपार्टमेंट नहीं बोलता है, लेकिन रेप्यूटेड कंपनी का इंजीनियर बोलता है कि हम जब आते हैं तो वी कीप so and so thing, we keep the oil, we keep essential tool kits, जैसे जिसको हिंदी में बोलते हैं ना पाना वगैरह है, वो वहाँ पे हम रिजर्व में रखते हैं। वो ये देखते हैं कि लिफ्ट मोटर रूम जो छत के ऊपर की तरफ होता है उसके अंदर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स मौजूद है या नहीं है। वो ये चेक करता है कि उसमें लीकेज कहाँ से हो रहा है। वो ये भी चेक करता है कि वो लिफ्ट रूम वेंटिलेटेड है या नहीं है। वो ये चेक करता है कि वहां पे स्मोक डिटेक्टर लगा या नहीं लगा हुआ। पर नॉर्मल एएमसी वेंडर्स ये सारी चीज नहीं करते। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप एएमसी वेंडर्स चुनो तो ये कोशिश करो कि इन रेप्यूटेड कंपनीज के ही चुनो। कॉस्टली होगा नो डाउट, पर आप अगर ये सोचते हो कि जिंदगी सस्ती है तो फिर बहुत बड़ा गलत डिसीजन ले रहे हैं आप इस चीज के लिए। हेमंत जी, इसमें कैसा है कि जितने भी 230 जो ये कॉन्ट्रैक्टर्स है, लिफ्ट मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर्स है इम्पैनल्ड विद द एनर्जी डिपार्टमेंट, मैंने रैंडमली मतलब मैंने ये पाया है कि none of them they are carrying with them the checklist of defects। It can be we can say in other words कि मुश्किल से 1 या 2% होगा, या बड़ी कंपनी लाइक Chandler है या Otis है, they may be having those checklists at the time of inspection of lifts, but 99% of the contractors are not undertaking the maintenance as per the checklist। तो ये पॉइंट को हमें स्ट्रेस करना पड़ेगा in our petition। Are you also trying to say कि 99% of the vendors
are those private AMC vendors who do not belong to this reputed companies, and they are doing a field work कि भाई जिस सोसाइटी को बेवकूफ बना सके उसका काम ले लो, आधा अधूरा काम करो और निकल जाओ. Are you trying to say that, Mr. Mohammed? No. They are already there in the panel. They are already there in जैसे BMC के panels में architects कैसे होते हैं, वैसे ये जो contractors हैं, ये पूरे महाराष्ट्र में जितने भी हैं, तो ये सब अपना उनके पैनल पे है. बट क्वेश्चन क्या हो जाता है कि एनर्जी डिपार्टमेंट इज ओनली कंसर्न कि भाई वो फीस आके कलेक्ट कर ले, उनको रेवेन्यू मिलता है. मैनेजिंग कमिटी जो है, मैनेजिंग कमिटी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर डाल देती है कि भाई आप जाके लिफ्ट का इंस्पेक्शन करिए, और वो जाके उनके पास क्या होता है कि एवरी इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट इंस्पेक्टर has got a number of lifts assigned on every single day. तो वो क्या करता है कि वो डिटेल्स में नहीं जाता है, ऐसे ही रैंडमली एक दो चार चीज देख लेता है और वो अपने इंस्पेक्शन को कंप्लीट करने की कोशिश करता है. बट द क्वालिटी ऑफ इंस्पेक्शन इज नॉट देयर. तो अगर So, वो Mohammed, let us presume for a moment we are talking of two different things. एक तो lift inspector deputed by the energy department to mandatorily statutorily come to your building to inspect the lift on 6 monthly basis. on a yearly basis. No, only yearly basis. Okay, yearly basis. And obviously you are paying him how much? Maybe 500, 1500, 1000, 2000? हाँ जी. So is it wise for us to think कि 1500 रुपए में वो ये सारी चीजें कवर करके जाएगा? It is only a persuasive thing. You need to only persuade him. He is only persuading you कि मैं आके लिफ्ट इंस्पेक्शन करूंगा जी. उसमें ये सारे क्राइटेरियाज पूरे होने चाहिए. So actually whom you should be behind is the lift vendors. Right. Okay. Now, as I mentioned, if it is a standard and reputed company, they have got their own checklist because they have to maintain their standards. Now, अगर एक chandelier की lift है, I hope I am pronouncing it properly. अगर उसकी lift है, तो it is not going to say कि भाई मेरे पास 100 पॉइंट की चेकलिस्ट है, ऊपर लिफ्ट रूम में ऑयल नहीं खत्म हो गया तो चलो कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम रख दूंगा. वो उनके पैरामीटर्स में नहीं आता है, वो उनके पॉलिसीज में नहीं आएगा, वो उनके है ना, बिजनेस एथिक्स में भी नहीं आएगा उनके, बिकॉज सर्टन कंपनीज विल हैव बिजनेस एथिक्स बट नॉट टू इनोकुलेट ये बिजनेस एथिक्स. अगर इन रेगुलर एएमसी वेंडर्स जो एनर्जी डिपार्टमेंट में सिर्फ एनरोल्ड हैं फॉर लाइसेंस पर्पसेस, इफ दे आर नॉट डूइंग द जॉब, then those people have to be held vicariously liable. In other words, if it is vicariously going to be liable, they are as it is bound vicariously liable under the Consumer Protection Act. But I am suggesting that they should be also made vicariously liable under the Indian Penal Code. Hemanji, that is why I had demanded criminal negligence liability to be fixed on the lift maintenance contractor as well as the managing committee and the lift owners. अभी कैसा होता है कि ये जो lift maintenance contractor है, we should definitely incorporate this in our petition कि ये वो 43 defects है या जो 100 defects है जो companies के, उसके basis पे ये inspection करे and they sign the copy. One copy should be with the managing committee society. One copy should be submitted on a monthly basis to the energy department. Because क्या है कि energy department के तरफ से जो inspection होता है वो साल में एक बार होता है, मगर on a regular basis it is the lift maintenance contractor who has to be held liable. So that is where the lacuna is. I'll take up Advocate Shiryashi wanted to say something. Ma'am, are you there? You Yes, may ma'am. suggest anything regarding to safety of the lifts, your own experiences, your suggestions, your advice. Please go ahead, ma'am. Yes. Okay. I will not recount what has already been said. लेकिन मैं इतने दिनों से मैंने जब सुना तो I realized कि ये जो टॉपिक है सेफ्टी का,
ये 2 टॉपिक में एक्चुअली डिवाइड होता है। एक होता है मैकेनिकल सेफ्टी, एक होता है नॉन मैकेनिकल इश्यूज। अब मैकेनिकल सेफ्टी पे काफ़ी चर्चा हो चुकी है, जैसे कि ARD की बात हुई थी, सेफ्टी ब्रेक्स की बात हुई थी, इमरजेंसी इवैक्यूएशन सिस्टम की बात हुई थी। ये सारी चीज़ें मैकेनिकल होती हैं, जो लिफ्ट में टेक्निकल होती हैं ये सारी चीज़ें। तो Okay. इसमें काफ़ी बातें हो गई हैं। मुझे एक एक्चुअली पूछना था एक चीज़ की, जो ARD होता है, मैंने पढ़ा था कि ये पावर फेलियर के टाइम पे ये ऑपरेट होता है, कि अगर सडन पावर फेलियर या ब्लैकआउट हो जाए तो फिर ये सडन मतलब ये हेल्प करता है सेफ्टी के लिए, इट विल हेल्प इन टेकिंग द लिफ्ट टू द नेक्स्ट फ्लोर फॉर सेफ्टी रीजंस। ये सिर्फ पावर ब्लैकआउट वाले टाइम पे वर्क करता है सर, कि अगर जैसे कि कोई सडन मैकेनिकल फेलियर हो गया, जैसे कि रोप में कुछ प्रॉब्लम हो गया, जैसे पुरानी लिफ्ट होती हैं, तब क्या ARD भी वर्क तब भी करता है? और अगर नहीं करता है तो वी विल नीड समथिंग लाइक दैट, क्योंकि पुरानी लिफ्ट ऑफ कोर्स आजकल मॉडर्न लिफ्ट हो गई हैं काफ़ी, लेकिन हमारी सोसाइटी 35 इयर्स की है एंड हमारे यहाँ अभी भी वो पुराना लिफ्ट है, वो स्विंग डोर वाला है एंड मैक्सिमम 5 लोग अंदर घुस सकते हैं लिफ्ट के। एक फैन लगा हुआ है, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली अ प्रॉपर एग्जॉस्ट सिस्टम। फिर फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम तो ये दूर की बात है, ये बिल्कुल ये सारी चीज़ें नहीं है, और शायद ये पुराने लिफ्ट में ये सारी चीज़ें होती भी नहीं। तो आई वांटेड टू नो कि अभी हम जब ये PIL फाइल कर रहे हैं, तो आई थिंक ये दोनों चीज़ों का एक कहीं एक होना चाहिए। ओल्ड लिफ्ट को भी इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि हम बोलते तो हैं कि इनको मॉडर्नाइज करना है, बट पैसे को छोड़ के वो करना कैसे है वो डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो जब बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना था तब उतना ही एरिया एलोकेट हुआ था उस लिफ्ट के बॉक्स के लिए। तो वो सारी चीज़ें कैसे करनी है, उसका सेफ्टी एक फीचर एक ध्यान में रखना चाहिए। और इसमें इमरजेंसी इवैक्यूएशन, जैसे किसी ने अभी बोला भी था, ये बहुत एसेंशियल है, नॉट जस्ट ऑर्डिनरी मतलब एबल लोगों के लिए, बट ऑल्सो फॉर पीपल जो डिजेबल्ड हैं, या जो सीनियर सिटीजन हैं, या जो व्हील चेयर यूज करते हैं। स्ट्रेचर विल बी डिफिकल्ट इन इन एनी सोसाइटी, हॉस्पिटल इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन व्हील चेयर को भी लिफ्ट में डालना निकालना, सीनियर सिटीजन्स का भी अगर वो स्टिक लेके चल रहे हैं तो वो कैसे अंदर घुसेंगे बाहर आएंगे, ये सारी चीज़ें एक होनी चाहिए। एंड जैसे डेफिनेटली बोला गया कि लिफ्ट का वो एक अलार्म बेल होना चाहिए, तो किसी ने सजेस्ट किया था कि ये सारी चीज़ों का एक चेक लिस्ट होना चाहिए और ये कंटिन्यूसली चेक होते रहना चाहिए। जहाँ नॉन मैकेनिकल की बात आती है तो दैट इज रिगार्डिंग पीपल, उसमें मैनेजिंग कमेटी आ जाएगा, उसमें मेंबर्स आ जाएंगे, और उसमें इन सब के ऊपर एक अम्ब्रेला है, वो है लॉ का। तो जब आप सेफ्टी फीचर्स की बात कर रहे हैं, तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पीपल, तो जैसे फायर ड्रिल होता है बहुत सोसाइटीज में, उनको सिखाया जाता है कि अगर फायर हुआ तो क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसे थोड़ा एजुकेशन थोड़ा देना चाहिए आम लोगों को, हर इंसान को, हर मेंबर को सोसाइटी के, और ये मैंडेटरी करना चाहिए कि इन केस लिफ्ट के इश्यूज हुए तो आप क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी इवैक्यूएशन अगर है तो कैसे होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ना वो पैनिक में होता है। किसी के दिमाग अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो किसी का दिमाग नहीं चलेगा। तो व्हाट इज योर प्रोसेस कि इन केस अगर जैसे आग भी लग गई तो आप क्या करेंगे उसमें, एंड इसमें लोग जो मेंबर्स हैं उनको पता होना चाहिए। सो आई थिंक ये एक मैंडेटरी होना चाहिए। ओके मैम, एंड एक मिनट मैडम, आपने जो बताया मुझे, वी एग्री, इट हैज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड, बट आई वुड आल्सो रिक्वेस्ट यू, if you have got suggestions on solutions to some of the things which you have mentioned, अगर आपके इमेजिनेशन में ऐसा कोई लगता है कि ठीक है इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है, तो प्लीज स्पेल इट आउट, लेट अस रिकॉर्ड दैट आल्सो, एनीथिंग। आई मीन अगर आपने 5 पॉइंट बताया तो किसी एक पॉइंट का सॉल्यूशन बता दीजिए आप। सर वैसे तो आई डोंट हैव एनी बैकग्राउंड इन इंजीनियरिंग डिवाइसेस एंड स्टफ, बट आई वुड सजेस्ट कि वी शुड इंसिस्ट दैट द गवर्नमेंट एक ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए, जैसे आपने ARD डिवाइस का आपने बोला,
तो एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहाँ मैकेनिकल फेलियर पे भी एक सेफ्टी ब्रेक चले. ओके, I आपकी don't know if जानकारी there के is a लिए device. ओके, आपकी जानकारी के लिए ये बता दें, ARD जैसे हम पहले ही बता चुके हैं, आई सपोज इट इज कॉल्ड एज ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस. पुराने लिफ्टों में नहीं होता था, Yes. आज के लिफ्टों में लग सकता है, बट अल्टीमेटली इट इज ए मैकेनिकल डिवाइस. लिफ्ट इलेक्ट्रिकल फेलियर से या लिफ्ट अनकंट्रोल्ड स्पीड से ऊपर नीचे आ जा रही है, या किसी कारणवश लिफ्ट का कंट्रोल छूट गया और लिफ्ट ऊपर से नीचे गिर रही है, तो उस समय ये ARD डिवाइस काम आता है. इट स्टॉप्स, Okay. it helps during the electrical failure, it stops free fall etc, and it helps you to reach your probable nearest landing. But ultimately this ARD device also is a mechanical device. Correct. For example, if there is a Mercedes car and it says कि there is an anti-collision device, जैसे पेड़ आ गया और मर्सिडीज उसके पेड़ के 1 फीट पहले रुक जाएगा, इतने उसके अंदर कैपेसिटी है. पर कभी कभी क्या होता है कि अगर मर्सिडीज 150 की स्पीड में हम चला रहे हैं, तो वो जो एंटी कोलिजन डिवाइस है वो भी फेल हो जाता है, बिकॉज इट इज ए मैकेनिकल थिंग. थिंग्स हैपन, देयर आर इवेंचुअलिटीज, सो समटाइम्स इट हैपेंस. So जैसे cars इफ में यू वो हैव एनी airbag होता है अदर ना, सॉल्यूशंस और एडवाइस, मैडम प्लीज. Yes, sir. I was saying कि जैसे कार्स में जैसे एयर बैग होता है ना, तो दैट इज, जैसे आपने भी बोला कि जैसे एंटी कोलिजन डिवाइस हेल्प नहीं करेगा, बट यू नो एन एयर बैग विल प्रिवेंट एन एक्सीडेंट, यू नो इट विल प्रिवेंट डेथ. सो आई वाज थिंकिंग कि इस पे ऑफ कोर्स थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, इसका एक मतलब इंजीनियरिंग एंगल से हमें सोचना पड़ेगा, बट वील हैव टू कम अप विद अ डिवाइस. इफ नॉट मतलब डायरेक्टली, जैसे ये जो एयर बैग है ये एक इनडायरेक्ट तरीका है टू सेव लाइफ. इट मे नॉट हेल्प टू प्रिवेंट एन एक्सीडेंट, बट इट विल हेल्प टू प्रिवेंट अ डेथ. तो ऐसा कोई चीज अगर हम कुछ सोच सकते हैं, आई नो राइट नाउ ये बहुत नेसेंट है जो मैं बोल रही हूँ, बट यू नो इफ एनीबडी एल्स आल्सो कैन थिंक अलोंग दिस डायरेक्शन, इंजीनियर्स, तो आई थिंक ये हेल्प होगा. एंड एक चीज जैसे नरोना जी, हाँ सर प्लीज बोलिए. श्रेयसी मैडम प्लीज गो अहेड. अच्छा सर, I'll just complete. I was just thinking सर कि जैसे Yes, yes. नरोना जी ने भी बोला था अभी कि मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई थिंक सर कि हमारे पास चेकलिस्ट है, जैसे पिछली बार अरुण अग्रवाल जी ने बोला था BIS के चेकलिस्ट हैं. हमारे कंट्री में आई थिंक लॉज काफ़ी हैं, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए प्रॉब्लम होता है, इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रॉब्लम होता है, और वो हम तभी कर पाएंगे अगर हम, जैसे आपने बोला, क्रिमिनल लायबिलिटी होनी चाहिए एंड दिस हैज टू बी मैंडेटरी. So we need to change or tweak the laws where we make it mandatory, not just for the managing committee, but also for the government. Let's go bigger. You know, we can make the state government liable because this is also, or you know, the BMC liable, क्योंकि ultimately ये check करते हैं. So when you bring bigger people in, they will automatically you know take a step towards it. This is human life. Okay, And ma'am. money, there has Thank to you be for. transparency. Yes, sir. Okay. Anything else, So ma'am? yes, sir. I'll conclude. Yeah. Mr. Mohammed, just one moment. Let the one of the speakers complete. श्रेयसी मैडम, आपको और कुछ बोलना है? No, sir. Basically, मुझे यही बोलना था कि whenever we draft the PIL, we should understand the mechanical and the non-mechanical. And non-mechanical में people का aspect होगा जो maintenance की तरफ जाएगा, और जो ये मतलब जो members हैं उनके तरफ. और also to understand disability, senior citizens, and also the quality of lift, old age, old lift हैं, नए lift हैं, how do we handle all? Okay. Do you think the question is to Shreyashi madam and of that to, research, but this is what I felt. Okay, and to I have a question for two people. One is Shreyashi madam and one is Fatima madam, because I can see them on the screen right now. बाकी लोग नहीं दिख रहे मुझे. अभी जैसे उदाहरण के तौर पे एक सोसाइटी है जिसमें मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट वगैरह इश्यू हुआ है, और आप उस सोसाइटी में एज ए विजिटर जाते हो और आपको लिफ्ट में आप क्लाइंब करते हो, और लिफ्ट किसी कारणवश 2 फ्लोरों के बीच में
रुक जाती है या बंद हो जाता है, ऑब्वियसली आप पैनिक हो जाओगे, क्योंकि आपका खुद का तो लिफ्ट था नहीं, आपको पता नहीं कि ये वाला लिफ्ट कैसे बिहेव करेगा। मेरा तो होम टाउन का जो होम कंफर्ट का लिफ्ट था वो तो ऐसा बिहेव करता था, तो इट वाज फ्रेंडली विथ मी, सो आई नो कि वो मेरा लिफ्ट ऐसा नहीं करेगा। और मैं अभी फॉरेन टेरिटरी में आई हूँ और लिफ्ट ऐसे रुक गई तो मैं पैनिक हो गया हूँ मैं। अब मुझे ये बताइए कि ऐसी स्थिति में मुझे इसको क्रिमिनल लायबिलिटी की तरफ मोड़ना है। You are not a consumer by virtue of the Consumer Protection Act, because you are not paying for the service, you being a visitor. So can we do it? What is your opinion? Shirazi madam, first you please, if you have any view on this thing. Shirazi madam. Anything if you have, no, do not have, does not matter. So sir, actually, becomes responsible that at one level consumers of that. So Your network is not proper, it seems. You're breaking off in between. वो आ रहा है सर, अभी आ रही है आवाज? हाँ जी, अभी आ रही है सर? Yes. At the end of the day, we may not be consumers because we're not paying, we are visitors. But if we increase the शिरस मैडम, आपका And then नेटवर्क if ठीक the नहीं है, lift एक comes under the 2 मिनट के बाद में आपके पास में आते हैं। फातिमा मैम, आर यू देयर? Yes, sir, I'm there. व्हाट डू यू से टू हाँ माय सर, ठीक क्वेरी? है सर। Sir, even as a visitor, if there is deficiency in service, we can criminal liability action can be taken. And in response to what Shreyasi madam said about the maintenance part and the mechanical part, sir, like it's just out of the box what I will be saying. Maybe it's an imagination, but like how for railways we have a hydraulic. So when the local is or the train is entering the platform and it is slowing down, there is an hydraulic thing which is activated by default. And when the train comes and halts, it touches the hydraulic and it halts. So the pressure is on the hydraulic. So in the pit that is there, like which Kamle sir just mentioned some time back, the pit which is not maintained well, not cleaned up. If there is people are spitting, throwing packets, and most of them it is the members who are doing it, who are staying there because the lift has gone up. They are standing there and eating chips, throw the packet in the pit. So a hydraulic system in the pit. So when the God forbid the lift crashes or it comes down with a force, and such a hydraulic system is activated, so could there be a possibility that those accidents can be reduced? It's just an out of box thinking, sir. Because in No, Mumbai, perfect. It is perfect. I think Mr. Muhammad, along with the electronic, a combination of hydraulic system needs to be incorporated into the lift. We can always discuss this thing with some technical person, some electromechanical engineer, some electrical engineer, and some hydraulic mechanical engineer to see whether this thing can be done up. जैसे ARD का done up हुआ, तो why not this thing also? Very true. Fatima, And, ma'am, anything else? no, that's it, sir. I was just listening to all this. I was just thinking over it, and it just came out to my mind. So I just put it up because in between there was an accident in Mumbai, or some local, and because of the old hydraulics of the British time, that an accident was averted. And there were people and who were telling that because these hydraulics are so old, it's more than now. We are only almost 80 years of our independence, so they should be changed. But they worked fantastically well, and a major accident was averted at the station, sir. Okay. So some mechanism like this could maybe help in the ground level in the earth when those hydraulics are installed. That could take the burden of the lift that is coming down with so much of gravitational force. I'm not an engineer, of course. But Madam, thank you for your opinion and advice. I think it is useful. Thank you, sir.
we will move forward. Mr. Afzal, you wanted to say something? Yeah, I would request Shreyashi ji that whatever points he has, in addition, if she can email it to me also, so that would also help. Shreyashi ji, are you there on? Yeah, she is there online. I will convey that message. Yeah. I think she is having some network problem, but I'll convey this message to her on one-to-one. Before we proceed further and take up questions of Mr. Vikrant Jindal and Mr. Ajay Popat, I would like to show a YouTube video which I downloaded for reference purpose, based on which we will proceed with this topic further. It is related to today's safety issues. Just give me half a minute, please. The thing was कि what all is necessary in the lift. Mr. Mohammed, your comments please on this. Yeah. ये जो एक्सीडेंट हुआ था ये 29 नवंबर 2020 में हुआ था. It was widely reported by Mumbai Mirror and ये धारावी में हुआ था. सबसे पहले तो बात ये है कि बच्चों को अकेले जाने देना ही नहीं चाहिए. It is a clear guidelines कि an adult should accompany the children, and if the adults are not accompanying the children, they should not be allowed. तो ये this can be taken as a criminal negligence liability, because वहाँ पे उन्होंने कोई लिफ्टमैन भी नहीं रखा है और ये सारे सेफ्टी बच्चों के who's going to look after it. जैसे मोरे साहब ने बताया कि कम से कम कैमरा तो लगा हुआ था ताकि हम लोग ये देख पाए. अब मुझे ये बताइए कि अगर लायबिलिटी हमें फिक्स करना है तो किस पे फिक्स करना है? क्या वो एएमसी वेंडर पे फिक्स करना है हमें मोरे साहब? क्या वो एएमसी वेंडर पे फिक्स करना है, सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी पे फिक्स करना है, या उन बच्चों के माँ बाप पे फिक्स करना? आपको एक चीज बता दूं बिफोर यू पीपल कमेंट ऑन दिस थिंग. आज के दिन पे मोटर व्हीकल एक्ट का एक अजीब सा कानून है, निराला सा कानून है और बहुत यूजफुल कानून है. वो ये बोलता है कि अगर मिस्टर मोहम्मद की एक कार है, कार रजिस्टर्ड है मिस्टर मोहम्मद के नाम पे, और मोहम्मद का बेटा या बेटी उस कार को, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वो 18 साल का हुआ है लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, और वो एक्सीडेंट करके बैठ जाता है, कार का नुकसान होता है, ये होता है, वो होता है, सब कुछ हो जाता है. केस किस पे दर्ज होगा? उस बच्चे पे तो होगा ही होगा. लेकिन इस मोटर व्हीकल एक्ट के वजह से मोटर व्हीकल का मालिक के ऊपर भी केस दर्ज होगा, मतलब उसके माँ बाप के ऊपर. मिस्टर मोहम्मद, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग कि जिसके नाम पे रजिस्टर्ड है व्हीकल. तो मैंने उदाहरण के तौर पे फादर का नाम लिया कि भाई फादर के नाम पे व्हीकल रजिस्टर्ड है, उसका बच्चा यूज करके आता है, मिसयूज करके आता है, जो भी कुछ करके आता है वो, लेकिन केस रजिस्टर होगा वो दोनों के नाम पे. इसी तरह अगर ये बच्चे लिफ्ट में ऐसा घुसते हैं, पैर मारते हैं लिफ्ट के दरवाजे पे, बटन से छेड़छाड़ी करते हैं या कुछ भी इंसिडेंट होता है, तो इसके जवाबदारी ये एमवी एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट के तुलना में क्या पेरेंट्स के लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए, या खाली हमें सेक्रेटरी को बोलना चाहिए कि नहीं भाई आप लिफ्ट के पास में खड़े रहो टोटली हर समय, तभी आपकी विकारियसली लायबिलिटी फिक्स होगी? या एएमसी वेंडर को बोलोगे कि नहीं आप अंदर मत जाने देना, या छोटी सोसाइटी है, बजट कम है, लिफ्टमैन नहीं रख सकते हो, सिक्योरिटी गार्ड नहीं रख सकते हो, वॉचमैन नहीं रख सकते हो कि भाई आप आओ जाओ करके. मैंने तो यहाँ तक देखा है पर्सनली कि वो सेठ का बच्चा है, वो लिफ्टमैन को बोलता है कि भाई तू बाहर निकल, मैं लिफ्ट चलाऊंगा. तो ये लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी फिक्स करना चाहते हैं हम लोग? मोहम्मद साहब, आपसे शुरू करते हैं. जी, यहाँ पे मैं समझता हूँ कि द मैनेजिंग कमिटी और द पेरेंट्स, उनके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि अक्सर ये पाया गया है कि अगर सोसाइटी में अगर 50 रुपया भी मेंटेनेंस बढ़ाने की बात करते हैं तो देयर इज अ यू एंड क्राई. कोई पैसे कोई अपने जेब में हाथ डालने के लिए तैयार नहीं है. तो अगर जो बिल्डिंग में यहाँ पे बच्चे हैं तो मेरे ख्याल से लिफ्टमैन तो वहां पे होना चाहिए, बिकॉज दीज आर द बेसिक थिंग्स फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ. तो अगर पेरेंट्स से अगर चूक हो जाती है
तो एंड सेकेंडली ऐसा है कि जो लिफ्ट मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर है वो उसका काम यही है कि वो आके लिफ्ट को चेक करके रिपोर्ट दे, और वो अगर कोई चीज खराब है तो उसको रेक्टिफाई करे, और दैट्स द जॉब ऑफ द लिफ्ट मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर. बट ऑन अ डेली बेसिस the managing committee has to think about it with respect to the safety of the senior citizens as well as the small school going children. Yes sir, but we will need to justify in the court. बाकी सब फ्रेंड्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ 1-2-4 मिनट और दीजिए मुझे. एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट में लिंक करना चाहता हूँ एक और इंसिडेंट से. मुद्दे की बात यह है कि आई कैन नॉट फिक्स द लायबिलिटी ऑन द मैनेजिंग कमिटी बिकॉज मैनेजिंग कमिटी ये बोलता है कि माई ड्यूटी इज टू प्रोवाइड यू कॉमन एमिनिटीज एंड सर्विसेज. आई एम नॉट सपोज टू बी प्रोवाइडिंग यू सिक्योरिटी एक्सेट्रा. मेरे सोसाइटी में लिफ्टमैन नहीं है, क्योंकि अगर 4 मेंबर की लिफ्ट है, जैसे मल्होत्रा हाउस अपना डीजीआर का ऑफिस है, 4 मेंबर बैठ सकते हैं उसके अंदर. उसमें से एक तो लिफ्टमैन बैठा हुआ है परमानेंटली, है ना, उसकी बिगर लिफ्ट चलती ही नहीं है, तो बाकी घुसेंगे उसके अंदर 3 लोग. अगर मैं सोसाइटी के लिफ्ट में ऐसा करूं तो एक आदमी शॉर्ट हो जाता है, और प्लस मुझे उसका पगार पानी भी देना, बोनस भी देना है वगैरह वगैरह. और मानो वो छुट्टी पे चला गया या उसको टॉयलेट जाना है उसी समय और बच्चा घुस गया अंदर, तो वो क्या कर लेगा. सिमिलरली एएमसी वेंडर बोलेगा कि भाई मैं लिफ्ट को मेंटेन करके चला जाता हूँ, उसके बाद में आप लिफ्ट के अंदर सिगरेट पीते हो या शराब पीते हो या केरोसिन लेकर जाते हो, वो आपका लुकआउट है. माँ बाप बोलते हैं कि ठीक है भाई मैं तो ड्यूटी पे गया हुआ था वगैरह, अब क्या करना चाहिए. तो आपको मोहम्मद साहब मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक लिफ्ट में ऐसा भी प्रोविजन है जिसको ओवरलोडिंग बोलते हैं, है ना, कि भाई लिफ्ट की कैपेसिटी कितनी है, तो 480 किलो की लिफ्ट की कैपेसिटी है, which translates to roughly about 6 odd people, yeah, overload capacity. So I suggest in our matter we should be also saying underload capacity, कि अगर 20 किलो से नीचे की लिफ्ट का वजन डिटेक्ट करता है, जैसे ओवरलोड का डिटेक्शन कर रहा है आप, करेक्ट मिस्टर मोहम्मद? So it should be underweight detection also, कि 20 किलो के नीचे हुई तो लिफ्ट ऑपरेट होनी ही नहीं चाहिए. So this may be one of the points that we can put. If there is an overload protection, then there should be an underload protection as well. Similarly, जैसे हमने ये बच्चे की लिफ्ट में देखा है, तो दरवाजा कैसे टेढ़ा मेढ़ा, एक बाहर का लकड़ी का दरवाजा है जी, एक अंदर का ग्रिल का दरवाजा है, वो बंद हो रहा है, बाहर का ऑटोमेटिकली बंद हो रहा है. तो ये सब चीजें वो लोग करते हैं जो अनलाइसेंस्ड या इलीगल वेंडर्स हैं, वो इस तरह की लिफ्ट्स बनाते हैं. अब आप यही प्रश्न कोई रेप्यूटेड वाले को पूछ के देख लो. अब शेंडिलियर भी बनाता है, कांच की लिफ्ट भी बनाता है, वो उसको पूछ के देख लो कि साहब आप मुझे इस तरह का दरवाजा लगा के दो, तो वो कहेगा कि साहब मेरे पैरामीटर में तो है ही नहीं है. सेम ओटिस भी नहीं करके देता है सब, तो ये कौन करके दे रहा है. आप लिफ्ट में मैन्युफैक्चरिंग का लेवल पट्टी भी होगा, वो मैंडेटरी है लिफ्ट एक्ट के अनुसार कि मैन्युफैक्चरर कौन है वो लगाना है, लिफ्ट की कैपेसिटी कितनी है उसका स्पेसिफिकेशंस वहाँ पे देना है, लिफ्ट कब बनी हुई है वो भी लिखना है उसके अंदर. लिखना नहीं है, इट हैज टू बी इम्प्रिंटेड ऑन दैट मेटल प्लेट, एंड देयर हैज टू बी अ लिफ्ट लाइसेंस आल्सो पेस्टेड इनसाइड द लिफ्ट. तो अगर ये सारी चीजें हो सकती है तो अंडरवेट का भी प्रोविजन कर सकते हैं सर. तो ये एक नोट कर लें. नाउ आई विल इनवाइट. इसमें एक और चीज है कि क्या होता है कि अगर वहां पे द लिफ्ट मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर जो होता है, ये उसको मेक श्योर करना चाहिए while certifying and while inspecting the lift कि all the mechanical parts are and electrical parts are in order. बिकॉज क्या होता है, इसके मेल फंक्शन की वजह से भी ये एक्सीडेंट्स होते हैं, और ये अक्सर देखा गया है एसआरए बिल्डिंग में जहाँ पे लोगों की तादाद वहाँ पे बहुत है, लिफ्ट में ट्रैवल करने वाले की तादाद ज्यादा है, और वहाँ पे कोई भी नहीं देखता है कि भाई आपके लिफ्ट के अंदर कितने लोग ट्रैवल करने चाहिए. ऑल दीज थिंग्स आर टोटली इग्नोर्ड. तो आई विल रिक्वेस्ट वन थिंग मिस्टर मोहम्मद अफजल, जी पेरेंट्स को लायबल, विकारियसली लायबल बनाया जाए फॉर अलाउइंग देयर चिल्ड्रन टू ट्रैवल अलोन इन द लिफ्ट. एक पॉइंट लिख लीजिए, हम लोग इस पे आगे फिर कभी चर्चा कर लेंगे. ओके, नाउ वी विल इनवाइट आवर अदर फ्रेंड्स. वी विल स्टार्ट विथ मिस्टर नईमेश. मिस्टर नईमेश, वन शॉर्ट क्वेश्चन बिकॉज हम लोग के पास में खाली
थोड़ा ही समय रह गया, बताइए सर आपका क्या सुझाव है? थैंक यू हेमंत जी। मेरा सुझाव है कि ये जो इंश्योरेंस अभी देखा है वो जो है वो 90% 7 फ्लोर्स सोसाइटी में बनाते हैं। नॉर्मली बिल्डर इसको जाली वाली देते हैं, मतलब ये लोग अपना थोड़ा उठाने के लिए एक दरवाजा बनाते हैं और एक जाली, तो विद्युत के बाहर का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, उसमें स्प्रिंग लगाया होता है और अंदर का जो होता है वो जाली है, वो कैंसिल करना चाहिए। अगर आप सजेशन में डालते हो तो इलीगल उसको अलाउ ये करना चाहिए, अनाउंस, क्योंकि इससे यही डेथ होती है। दूसरा, ऐसे छोटे ये अंदर लिफ्ट में सेंसर नहीं होता, जैसे कि बड़ी लिफ्ट होंगे बड़े फ्लोर वाली में अंदर बाहर दरवाजा हमारा पैर आ गया या बॉडी का कोई पार्ट है तो वो दरवाजा बंद नहीं होता। उस तरीके का कोई सेंसर अगर लगा देते हैं तो लिफ्ट चलेगी ही नहीं। लड़का फंस गया, बच्चा फंस गया, वो की वजह से लिफ्ट नीचे से कोई बटन प्रेस करता है या ऊपर से। थर्ड मेन चीज कि इसका लायबिलिटी सोसाइटी को नहीं दे सकते हैं, पेरेंट्स को ही देना है। जैसे कि आपको ये नहीं करना वो नहीं करना स्ट्रिक्टली हम सेक्युलर हमको मिलता है सोसाइटी मैनेजमेंट की तरफ से, वैसे सर्कुलेट में ये दिखना है कि स्ट्रिक्टली एक्शन कानूनी लिया जाएगा अगर आपने अपने बच्चे को अकेले लिफ्ट में भेजा या उसके अलावा ये इंसिडेंट्स ऐसे हम रोक नहीं सकते हैं। और बच्चा आर सिंगल अलाउड नहीं है, हम वॉचमैन रख नहीं सकते हैं क्योंकि हमारी साथ हमारे जो सोसाइटी है वो छोटी है, तो डे नाइट के हमारे वॉचमैन होते हैं, मगर लिफ्ट के लिए हम वो नहीं कर सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते जैसे सर हेमंत सर ने बताया। सो इसमें आपको स्ट्रिक्ट कानून जो हम सोसाइटी के रखते हैं उसमें एक रखना जरूरी है। तो ये 3 मेरा सुझाव है कि ये होना। और दूसरा, हाँ, चौथा कि जो 7 फ्लोर अपना सोसाइटीज होती वो जनरेटर नहीं रखते, कुछ भी नहीं है, अटक गई फिर चिल्लाते चला गया है 2 घंटे से लाइट बंद है, बैठा हुआ है। दूसरा वो फिल्म के लिए एक कंपल्सरी है, क्या चाहे 5 माला हो, 7 हो या मल्टी फ्लोर हो। ठीक है, ओके मिस्टर नईमेश, वी हैव नोटेड डाउन दिस 4 पॉइंट्स। अभी मैंने आपको जो वीडियो दिखाया अफजल साहब, जो छोटा बच्चे का, इसमें एक लेकुना क्या था, एक दरवाजा बंद हुआ, दूसरा दरवाजा बंद नहीं हुआ, फिर भी लिफ्ट चल पड़ी। एक सेफ्टी मैकेनिज्म के हिसाब से द लिफ्ट शुड ऑपरेट only and only when both the doors are detected as closed. Right. So this one of the safety features should be incorporated in this BIS system. मेरे ख्याल से ये इट इज वेरी मच देयर, मगर क्या हो जाता है कि जैसा निमिष जी ने बताया कि इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट कि ये डोर क्लोजर जो होता है उसकी इंटेंसिटी होती है, कोई उसको बहुत ज्यादा मतलब यानी कि बहुत जल्दी बंद हो जाए, कोई थोड़ा आराम से बंद हो। तो मेरे ख्याल से अगर एक्सीडेंट को अवॉइड करना है तो वी कैन सजेस्ट के इस चीज को अगर अवॉइड कर लें डोर क्लोजर को, ऑल्दो वी अंडरस्टैंड कि फिर आपको मैन्युअली वो दरवाजे को खींच के बंद करना पड़ेगा, बट वहां पे थोड़ी सेफ्टी रहेगी। यस सर, तो आप ये भी एक हम लोग सेफ्टी फीचर में अपने डिस्कशन में ये ऐड कर लेते हैं कि जब तक दोनों दरवाजे कोलैप्सिबल डोर्स की बात कर रहे हैं या नॉन ऑटोमेटिक डोर्स की बात कर रहे हैं, तो जब तक दोनों दरवाजे क्लोज्ड डिटेक्ट ना हो तब तक लिफ्ट नहीं चलना चाहिए, 1। दूसरा, ऑटोमेटिक डोर्स में भी देयर इज अ सेंसर, so the door opens up automatically if it senses there is something in between. But similarly, this same feature I think is not available in this automatic doors closers also. So I think we should check out this particular thing and speak to some people regarding this issue also. Right. Okay. I will invite Mr. Prakash More to give his views on it, please. Yeah, I don't know about the lift. ये जो बाहर का ओपन डोर करने का जो हैंडल रहता है, इज देयर एनी हाइट रिक्वायर्ड कि 3 फीट के ऊपर ही होना चाहिए 4 फीट से? बिकॉज दैट मे बी द
reason that those children must have entered into that lift because it is comfortable for them to open. जैसे हमारे घर में डोर होता है वो 3.5 to 3.5 या 4 फीट के ऊपर ही रहता है 42 इंचेस पे होता है 42 इंचेस पे होता है राइट तो वैसा कुछ होता है क्या मुझे पता नहीं आई डोंट नो अबाउट दैट इज देयर एनी स्पेसिफिकेशन इन द दैट वी नीड टू चेक इट आउट इन द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स लिफ्ट के लिए जो है लास्ट टाइम अरुण अग्रवाल साहब ने क्लियरिटी दिया था उस चीज के बारे में बट ये चेक करने वाली बात है बट एनीवे इट हैज बीन रिकॉर्डेड we will check it out compulsory okay any other suggestion Mr. More no sir okay, thank you Mr. Sanjeev Thomre you wanted to say something yes sir एक्चुअली मैं भी लिफ्ट का मेरा पोर्टफोलियो देखता हूँ मेरे पास तो सवाल ऐसे कुछ कुछ आते हैं एकदम सही है मगर अभी आपने जो बोला कि अगर वो कम वेट वाला है तो लेगा नहीं मगर कैसे कि ऑटोमेटिक लिफ्ट में अगर मेरे को अगर 5वें फ्लोर पे लिफ्ट पूछनी है तो ऑटोमेटिकली आ जाती है ना तो उधर हम लोग कम वेट का और बड़े वेट का ये सब नॉर्म्स कैसे रख पाएंगे पहली बात सर आपके 5वें फ्लोर पे लिफ्ट रुकती है आप जो ओवरलोड का जो है वो 5वें फ्लोर से या 10वें फ्लोर से या ग्राउंड फ्लोर से कोई संबंध नहीं है मैं आपको ये इम्प्रेस करना चाह रहा था कि अगर लिफ्ट की कैपेसिटी 4 लोगों की है ठीक है ना या लेटर से 6 लोग पकड़ लेते टिपिकली 480 फीट लिखा हुआ देखा है मैंने कई लेबलों में और वो लगभग 6 लोगों के लिए होती है ये मान के कि वे एक आदमी लगभग एवरेज 80 किलो का है और अगर ओवरलोड डिवाइस लगा हुआ है और आपने उसके अंदर 7वां आदमी अगर घुसता है तो क्या वो लिफ्ट ऊपर नीचे जाएगी कि नहीं जाएगी नहीं जाएगी सिमिलरली मेरा ऐसा कहना था कि ये ओवरलोड डिवाइस तो लग गया अब इसको अंडरलोड डिवाइस भी लगाइए आप ताकि लिफ्ट में अगर 20 किलो से कम की कोई भी चीज ऑपरेट करने की कोशिश भी करता है वो तो वो ऑपरेट ना हो कोई छोटा बच्चा भी होगा तो भी वो ऑपरेट नहीं होना चाहिए आपका मिनिमम क्राइटेरिया आपने क्या लिया हुआ है एक आदमी का 480 किलो डिवाइडेड बाय 6% तो 6% जाते तो आपने एक आदमी का वजन ले लिया लगभग 80 किलो लिया हुआ है अप्रोक्सीमेटली इसी तरह अगर 3 बच्चे भी घुसते हैं अप्रोक्सीमेशन बता रहा हूं मैं तो भी उनका वजन 40 किलो 50 किलो से ज्यादा नहीं होता है तो आप ऐसा एक अंडरलोड लगाओगे तो बच्चे सिर्फ और बच्चे अंदर हो जाकर ऑपरेट ना कर पाए ये हमें एक सेफ्टी फीचर की हम बात कर रहे थे आपने ओवरलोड की बात कर दिया मैं अंडरलोड की भी बात कर रहा हूँ ओके तो बच्चे अगर जैसे अभी हमने एक वीडियो दिखाया अगर आपने देखा है वो तो 3 बच्चे घुसे अंदर मन मर्जी से लिफ्ट का बटन दबाए जा रहे हैं ये तो हम लोग ने अपने बच्चों को सिखाया नहीं ना कि मैं 4थे माले पे रह रहा हूँ तो मैं 4था माला का बटन तो दबा दूं लेकिन साथ में 5वें 8वें 10वें 15वें बटन भी दबा दूं ये तो कोई बच्चा को सिखाता नहीं है माँ बाप करेक्ट ये तो खुद की मस्ती होती है अपनी हम ये बच्चों के नाम पे हम ये चीज छोड़ दें कि नहीं बच्चे हैं भगवान का रूप है ऐसा है वैसा है ये हम सोचने बैठे या हादसे होने के बाद में हम चौकन्ना हो जाए क्या होना चाहिए हमें अगर मेरे बच्चे खराब हैं उनका दिमाग ठीक से नहीं चल रहा है तो एक उनको ठीक करने का या उनको समझाने का दायित्व किस पे है आपका है या मेरे पे या वो माँ बाप पे है इसीलिए मैंने आपको थोड़ी देर ये पहले बोला कि माँ बाप के लिए भी विकैरियस लायबिलिटी लागू करना जरूरी है बिकॉज एक कानून मोटर व्हीकल्स एक्ट उस चीज पे कायम है इट इज देयर ऑलरेडी देयर सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये लागू कर दिया है और क्या जरूरत थी कि मेरा बेटा चला रहा है तो मुझे क्यों पकड़ना है उस चीज को अगर मेरे बेटे ने 4 आदमी को मार दिया अपने गाड़ी से तो मेरे ऊपर भी क्रिमिनल केस कैसे कर सकते हो आप लेकिन कानून वैसा बन गया हुआ है तो अगली कानून किस चीज के लिए बना हुआ है ये कि भाई अगली बार वो जो बापूजी है वो जो पिता है वो जो बाप है वो ये नहीं सोचे कि अरे मैं तो अरबों खरबोपति मेरा बच्चा जो मर्जी आए करे अब वो होशियार हो जाएगा कि भाई अब उसने अगर कुछ किया तो अंदर तो मुझे भी जाना पड़ेगा मेरा भी बेल होगा मेरे पर भी केस चलेगा और केस अगर हार गया तो मुझे भी जेल की टर्म होगी 3 साल की मिनिमम है ना 304 ए नल कल्पेबल होमिसाइड के लिए 7 साल की सजा है तो अंडरवेट लगाने में हमें क्या तकलीफ है सर अपने लिफ्ट में अंडरलोडिंग लिफ्ट में
मगर वो Facility- वर्कआउट होगा क्या, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि टेक्निकली वर्कआउट कैसा होगा। जहां क्योंकि जिंदगी का सवाल है, आपने ओवरलोड डिवाइस वर्कआउट किया। 50 हाँ। बरस पहले आपने ओवरलोड डिवाइस का सपना भी नहीं देखा था। Am I correct, सर? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आज क्यों देख लिया आपने? आज क्यों लागू किया उस चीज को? आज अगर ये बच्चे का इंसिडेंस हुआ है, अगर ये लेजिस्लेचर में जाता है डिस्कशन होने के लिए पार्लियामेंट में, हाँ। और वहां पे अगर ये बोल दिया जाता है कि नहीं, ऐसे घटना ओकेशनली हो सकती है, लोगों की रिपोर्ट्स आए कि बच्चे घुस के लिफ्ट में कोई भी बटन दबा रहे हैं या हादसे हो रहे हैं वगैरह वगैरह, तो आपको लगता है कि जैसे ये ओवरलोड डिवाइस का कानून बना है, तो ये अंडरलोड डिवाइस का कानून बनने में कितना समय लगना चाहिए? और अगर कानून बन जाता है तो आपने जो बोला कि भाई फाइनेंशियली वायबल होगा कि नहीं, टेक्निकली वायबल होगा कि नहीं, आप जादू से सारा चीज वायबल कर दोगे सर जी। करेक्ट। जैसे Right. मोटर व्हीकल एक्ट में कैसे वायबल कर दिया कि मेरे बेटे ने किया तो चलो बापूजी को भी अंदर करो, हाँ। किया ना आपने सर। Right. इसी तरह प्रेसिडेंस एस्टैब्लिश होता है, धीरे धीरे इवॉल्व होते हैं हम लोग धीरे धीरे सीखते हैं, तो इसमें भी सीखने में कोई तकलीफ नहीं है। मिस्टर मोहम्मद, इफ यूर कमेंट ऑन योर दिस थिंग प्लीज। आई थिंक सो, आप जो बोल रहे हैं बहुत सही है कि अंडरलोड डिवाइस जरूर होना चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चों के जो एक्सीडेंट है काफी हद तक कम हो जाए। मिस्टर संजीव तोमरे, यू हैव एनीथिंग एल्स टू से प्लीज? यस सर। और दूसरा, जैसा कि आपने मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में अभी जो ये जिक्र किया है, सेम वही हिसाब से मेरा कहना ये था कि अगर गडकरी सर बोलते हैं कि 15 साल के बाद अगर आपका व्हीकल गया है तो गया है, वही हिसाब से क्यों ना हम आज भी ये बात कर रहे हैं कि 2000 साल के पहले के जो भी लिफ्ट खराब है या उसको हम लोग अपडेट करेंगे, तो उससे ये भी एक बायलॉज में रखना चाहिए कि 20 साल के बाद अगर कोई लिफ्ट तुम्हारी खराब है या उसका अगर एक कोलैप्सिबल डोर का झमेला चाहिए ही नहीं हमें। ये जैसे कि आज हम लोग आज भी बच्चों का अगर इतना सेफ्टी के लिए देख रहे हैं, तो डोर प्रॉपर लॉक हुआ है या नहीं लॉक हुआ है, तो ये सब चीज चाहिए ही नहीं। 20 साल के बाद ये लिफ्ट आपको अगर बंद करना है तो करना ही है, क्योंकि उस यही लॉ लाना चाहिए अभी कि नहीं, अभी जो भी आज के सेफ्टी के हिसाब से 2 डोर है, वो दोनों डोर अगर बंद होते तो ही वो लिफ्ट ऑपरेट होती है। तो चलो ये एकदम सही होगा कि जैसा कि आपने मोटर व्हीकल एक्ट में लेके आए, सेम ऐसा ही करो कि अभी कोलैप्सिबल, जैसा कि दरवाजा प्रॉपर बंद हुआ कि जैसा हमने वो बच्चों के इसमें देखा कि कोई उधर अंदर क्या कर रहा है, वो दरवाजा बंद होगा बाद में खुलेगा, अनमैच्योर गाइज है, तो वो चाहिए ही नहीं। एक बार अगर, और आज के दिन पे तो सब लिफ्ट ऐसे आई भी गई है, जो जैसे कि आपने जो बताया संजीव जी, वो हाँ। ऑलरेडी लिफ्ट एक्ट में मौजूद है, पॉइंट हाँ। दिया हुआ है कि भाई हाँ। 20 साल के बाद में लिफ्ट बदली कर देना है। हाँ, पर मगर वो नहीं चीज रहा है। लागू नहीं हो रहा है, इसीलिए हम लोग आज ये सारी चर्चा का विषय लेके सेफ्टी, हमने लास्ट टाइम पॉलिसी डिसीजंस पे बात किया, आज हम सेफ्टी पे कर रहे हैं, आगे हम 3-4 और पॉइंट्स पे करेंगे बिफोर वी फाइनलाइज दिस पर्टिकुलर पिटिशन फॉर द कोर्ट्स। और थोड़ा एक पॉइंट ऐसा था कि ये भी रियलिटी है कि ट्रांसपेरेंट ही चाहिए, जैसे कि ये दरवाजे अगर वो बंद होता है, अंदर का हो या बाहर का हो, तो उसके लिए भी अभी वो कोई किसी को परवरते का है, कोई इकोनॉमिक तो नहीं, ये सेफ्टी है। तो हमें एट एनी कॉस्ट दोनों डोर एक्रेलिक के जो भी ट्रांसपेरेंट चाहिए, तो ट्रांसपेरेंट चाहिए कि इट इज विजिबल टू ऑल। ये भी एक नॉन स्लिप के अंदर आना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग ये फेस कर रहे हैं। अगर तीसरे और चौथे माली के बीच में अगर कुछ होता है और उधर अगर दोनों भी ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, तो वही होना चाहिए, क्योंकि उसके साथ से बहुत सारे एक्सीडेंट से हम लोग बच सकते हैं। तो ये कंपल्सरी होना चाहिए कि लिफ्ट में जो कुछ भी हो रहा है तो इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, डोर सिस्टम शुड बी ट्रांसपेरेंट, दैट्स ऑल। ये अगर हम लोग कर पाए तो क्या होगा, ऐसे एक मेरा सोच है सर। यस सर, ये ऑलरेडी हमने नोटेड कर लिया है, बट आपका धन्यवाद फिर से ये विषय को सामने लाने के लिए, क्योंकि ये भी एक सेफ्टी के हिसाब से ही आता है। अगर हम लोग बच्चों के लिए इतना अगर लोअर वेट का भी ये कर सकते हैं, तो ये एकदम इम्पोर्टेंट है कि 3rd और 4th बीच में अगर कुछ होता है तो ये मुझे भी विजिबल नहीं रहेगा, क्योंकि अगर मैं 3rd फ्लोर पे हूँ और आधे में अटका है लिफ्ट, तो वो खाली मैं लाइट्स और ये देख करके अंदर क्या हो रहा है नहीं देख सकता हूँ। तो कुछ ये भी पॉइंट करके एक्चुअली अगर हमने, अगर मोहम्मद साहब आपको याद हो तो मैंने पिछली बार
डिस्कस किया हुआ था। फिर ये बात आ गई थी कि ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड तो हाईली स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस और वगैरह वगैरह लोगों ने बनाया हुआ है। और जैसे मैंने आपसे भी डिस्कस किया कि आप टेक्निकल हो, आप इंजीनियर हो, आप हाइड्रोलिक वगैरह हो, जो भी कुछ हो आप हो, पर ग्राउंड लेवल में मैं रह रहा हूँ, है ना। मैं 6 क्यूबिक स्क्वायर फीट के लिफ्ट के डब्बे में चारों साइड मेटल का केज है, ऊपर भी मेटल है और जमीन पे भी मेटल है, दरवाजा भी मेटल का है। मैं अगर लिफ्ट में ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे हाइड्रोफोबिया है या और भी कई टाइप के फोबिया है, बंद रूम में मैं नहीं रह सकता, बंद कमरे में नहीं रहता, उसको भी एक फोबिया बोलते हैं, टेक्निकल टर्म इस समय नहीं पता मुझे। तो मैं ऐसे लिफ्ट में घुसता हूँ और मुझे हाइपरटेंशन की भी बीमारी है। मैं लिफ्ट में घुसता हूँ और लिफ्ट सडनली बंद हो जाती है 5 मिनट के लिए, मेरे सांस उखड़ने लगती है उस समय, मुझे घबराहट हो जाती है, एंड आई बिकम प्रोन टू हार्ट फेलियर ऑल्सो, I become prone to have a brain stroke also because of high tension, hypertension. Absolutely. So why did this particular point was not thought of by the makers of lift safety parameters in the BIS? Because it was not discussed with me, it was not discussed with you, it was not discussed with our friends over here. Did you take opinion of the civil society कि सर आप लिफ्ट में ट्रैवल करने वाले हो, आपको क्या क्या होना चाहिए उसके अंदर, आपका व्यूज क्यों नहीं लिया गया हुआ है? तो इसीलिए हमारा जो आज ये पिटीशन बनने का जो सामने मुद्दा आया हुआ है, या जो संजीव साहब ने बताया और कई लोगों ने बताया, यही सब चीज सामने ले रहे हैं। जैसे कि अगर मैं ये बोलता हूँ कि मुझे ट्रांसपेरेंट केज वाला लिफ्ट चाहिए, तो बाहर जो है वो तो मुझे दिख सकता है। अगर मैं ये बोलता हूँ कि मुझे इन्वर्टेड होल वाला ट्रांसपेरेंट केज का लिफ्ट चाहिए, तो कोई ये बोलेगा कि नहीं ट्रांसपेरेंट तो हीट रेसिस्टेंट, आप कैसे बात बोल सकते? आज ऐसा मटेरियल है 5 mm फाइबर ग्लास इज हीट रेसिस्टेंट अप टू 300 डिग्रीज। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, थोड़े समय के बाद में गूगल कर लेना, है ना। अगर मैं वो हीट 5 mm कितना हुआ, ये मेरी उंगली इससे भी आधा पतला, हीट रेसिस्टेंट है, मतलब 300 डिग्री आग बाहर लगी हुई है तो भी मैं अंदर सेफ हूँ। अब ये बोलेंगे कि धुआं अंदर आ जाता है, तो उसके लिए इन्वर्टेड होल्स कर सकते हैं। इन्वर्टेड होल का मतलब क्या है? आपने आइसक्रीम खाया होगा सर, अफजल सर, कोन वाली आइसक्रीम खाई होगी। कोन में एक हिस्सा बड़ा होता है और नीचे एक पतला हिस्सा होता है। संजीव साहब आप लिफ्ट इंडस्ट्री में है क्या? संजीव थोमरे सर? हाँ सर। ओके, तो अगर उस फाइबर के डोर पे, ट्रांसपेरेंट फाइबर के डोर पे मैं ऐसा होल करता हूँ, आइसक्रीम का कोन लगाता हूं मैं, अंदर बड़ा होल होगा और बाहर सिर्फ छोटा सा पतला सा होल होगा। अंदर की हवा बाहर जाएगी, अंदर का स्मोक बाहर निकल जाएगा, लेकिन बाहर का स्मोक भी अंदर नहीं आएगा। बाहर आग लगी हुई है तो आपको दिखाई देगा, लेकिन बाहर का फ्लेम अंदर नहीं आएगा, बाहर का स्मोक भी अंदर नहीं आएगा। तो ये सिर्फ मुझे क्यों सोचना है? आप टेक्निकल आदमी हो, आपने क्यों नहीं सोचा BIS को फॉर्मुलेट करने के समय? आपने पूछा होता और सिविल सिटीजन को, सिविल सोसाइटी को पूछा होता, तो आप तो समझो BIS के एक 500,000 टेक्नीशियंस ने ये सारे बनाए होंगे, और सिविल सोसाइटी में सर 5 करोड़ से ज्यादा लोग बैठे हैं जो आपको सजेशंस दे सकते हैं। जैसे कि अपना, हाँ सर हेमंत जी, और कुछ और जैसे कि आपको मैं मोहम्मद साहब, एक मिनट संजीव जी आप बोलिए और फिर कंक्लूड करिए। और सर एक लास्ट का ये था, जैसे कि आज भी हेलीकॉप्टर हुआ तो आप हम लोग ब्लैक बॉक्स के लिए यूज करते हैं, तो ऐसा कोई सिस्टम भी आपके पास चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो कम से कम, आज अभी आपने एक वीडियो दिखाया, उधर हमने बोला कि थैंक्स टू गॉड देयर वाज अ CCTV कैमरा। नो, CCTV कैमरा शुड बी इनबिल्ट बाय द लिफ्ट ओनली, क्योंकि अगर कुछ होता है तो इट शुड बी विजुअलाइज, ये हमें देखना ही है। तो चलो ब्लैक बॉक्स तो नहीं दे सकते, या उसके लिए हम लोग सोच सकते हैं, बट नो, CCTV मस्ट बी देयर। ये भी एक हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में हमें थैंक्स टू गॉड बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चाहिए ही चाहिए। ये एक मेरा व्यू था सर आपके। यस सर, मिस्टर मोहम्मद साहब प्लीज लिख लीजिए, एंड आल्सो देयर शुड बी ए स्मोक डिटेक्टर इनसाइड द लिफ्ट। वो एक सेफ्टी फीचर हम जो बार बार सोचते हैं लेकिन भूल जाते हैं बोलना।
Okay, Mr. Sanjeev ji, thank you for joining us and thank you for all your advices and suggestions. और किसी को कुछ बोलना था क्या? सर 4 मिनट और बचा हुआ है। हेमंत जी, हाँ, आपको मालूम होगा प्रीवियस पिटीशन के टाइम पे हाई कोर्ट ने एक कमेटी फॉर्म की थी और वो कमेटी में इन्होंने क्या किया, लिफ्ट ओनर्स को उन्होंने इंडक्ट किया, जैसे ओटस वाले हैं, शेंडले वाले हैं और पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट के लोग, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो सारे थे, एंड दे डेलिबरेटली केप्ट मी आउट because I was representing the people. तो I had raised strong objections और उनका जो कमिटी की जो रिपोर्ट्स आई थी उसके ऊपर भी मैंने in writing में objection raise किए थे. Yes. So now one of the features is whenever this policy decision takes place without consultation of the civil society means जैसे हम लोग सामने बैठे हुए हैं, civil society में you will get more than 1 crore people to offer you suggestions and they will give you 1000% workable solutions. They will give you 1000% safe solutions. No lacunas. आप जो नहीं सोच सकते हो वो भी सजेशंस सिविल सोसाइटी वाला आपको देगा. Right. आग लगाने के कुछ तरीके होते हैं, लेकिन अगर आप आसाम चले जाओ या आंध्र प्रदेश के जंगलों में चले जाओ, है ना, या अफ्रीका में चले जाओ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, यूट्यूब में अवेलेबल है, वीडियोस में, गूगल में अवेलेबल है, तो वो आपको 1000 तरीके के आग लगाने के तरीके बताएंगे जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे. तो वो कौन कर रहा है? वो सिविल सोसाइटी के लोग ही आपको आइडिया दे सकते हैं ना. एंड आपको क्या तकलीफ है सिविल सोसाइटी के लोगों की बातों को इम्प्लीमेंट करने के लिए? आपका डिक्टेटरशिप कंट्री तो है नहीं. आप ये जो कानून बना रहे हो वो आपके खुद के लिए तो बना नहीं रहे हो, वो तो पब्लिक के लिए बना रहे हो आप. तो पब्लिक के सुनने के लिए आपको क्या तकलीफ है उसके अंदर? तानाशाही करना है कि दादागिरी करना है कि डेमोक्रेसी में करना है? And that is what is my contention. Anyway, go ahead, Mr. Afzal. You got another 5 minutes. या जैसे कि आपको मालूम है कि लिफ्ट एक्ट भी अमेंड किया गया था मेरे पिटीशन को लेके, तो अभी लिफ्ट रूल भी मतलब यानी इज इन द पाइपलाइन. तो हमें ये, अगर हमारा पिटीशन उस लिफ्ट रूल से ड्राफ्टिंग से पहले अगर हमारा पिटीशन फाइल होता है तो वी शुड इनकॉर्पोरेट के पब्लिक ओपिनियन शुड बी कॉल्ड एंड इट शुड बी मैंडेटरी. Public consultation. I will not say opinion. Opinion तो साइड में कंसल्टेशन. यस. तो ये चीज मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से पूछा था, बट अभी तक आगे से कोई अपना वहां से रिप्लाई नहीं आया है. Okay, Mr. Vikrant, you wanted to say something? थोड़े में. हाँ जी साहब, मुझे ये पूछना था कि जैसे अभी संजीव सोमनी साहब ने बताया, मुझे लगता है कि इनका कहना था इंटरनल बटन एंड एक्सटर्नल बटन अंडरवेट के लिए. इंटरनल बटन शुड नॉट बी वर्केबल अगर ये वर्कलोड 10 किलो से या 20 किलो से कमती है, बट एक्सटर्नल बटन हैज टू बी वर्केबल क्योंकि लिफ्ट एम्प्टी होती है जब कोई बुलाता है लिफ्ट को नीचे उतरने के लिए या चढ़ने के लिए. हाँ, ओवरलोड के लिए कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि इंटरनल बटन अगर वर्कलोड ज्यादा होगा तो लिफ्ट ऑपरेट करेगी नहीं. सेकंड, मेरा सजेशन ये था कि वी शुड बैन द स्टील डोर्स एंड वी शुड मेक इट कंपल्सरी ग्लास डोर्स जैसे कैप्सूल लिफ्ट है. सोली वी कैन बी एबल टू मेक आउट कि अंदर कौन है बाहर कौन है. अभी जो मैंने आपका वीडियो देखा है और जो चाइल्ड अंदर फंस गया था, आई फील द इनर डोर एंड द आउटर डोर में गैप शुड नॉट बी मोर देन हाफ अ इंच, बिकॉज छोटे बच्चे का भी फिजिक हाफ इंच से तो बड़ा ही होगा. तो अगर जो गैप होता है ऑटोमेटिकली डोर बंद ही नहीं होगा. अगर जो कोई भी बीच में लड़का बच्चा खसता है, ये सेफ्टी मतलब डायमेंशन ऐसा होना चाहिए इंटरनल और आउटडोर डोर में गैप जरा कम होना चाहिए ताकि कोई गलती से भी आदमी अंदर आ जाए तो वो चीज में दरवाजा ना बंद हो. और तीसरा ये है, जिस प्रकार से आज सोसाइटीज में सीसीटीवी कैमरा कंपलसरी है, वॉचमैन के पास भी सीसीटीवी कैमरा होता है. जैसे हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ी स्क्रीन लगी है, वॉचमैन के बैठे बैठे उसको सोसाइटी की हर मूवमेंट मालूम पड़ती है. जैसे लिफ्ट में अंदर कैमरा लगा हुआ है, उसका कनेक्शन एक मेन वॉचमैन की तरफ भी हो तो आई फील इट में एनहांस द सेफ्टी स्लाइटली. दैट्स इट. थैंक यू. So may I add one point? Yes, sir. सर, एज मिस्टर जिंडाल ने अभी बोला वो बिल्कुल एक सही चीज़ बोला कि ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है. सेफ्टी फीचर्स मैकेनिकली हम कर सकते हैं बट एक ह्यूमन एलिमेंट चाहिए
तो जैसे वो बच्चे का वीडियो हमने देखा, सीसीटीवी कैमरा था, तो देयर शुड बी एन अलार्म सिस्टम टू दैट सीसीटीवी कैमरा अगर वो सेंस करता, या जैसे आपका जो अंडरवेट वो लोड वाला जो आपने बोला कि 20 किलो वाला है, तो देयर शुड बी अ सेंसर जो सेंस करता है कि ओके ये अंडर वेट है, इतना कैपेसिटी के नीचे है, एंड ये एक अलार्म से कनेक्ट करता है जो लाइक ही सेड सिक्योरिटी कैमरा में अटैच्ड है, तो यू इमीडिएटली फिर किसी को पता चलेगा कि ऐसा हो रहा है। दूसरी चीज सर कि ऐसा अम्यूजमेंट राइड्स में होता है कि एक पर्टिकुलर हाइट के लोग ही वो पर्टिकुलर राइड में चढ़ सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप, ये फॉरेन में होता है, आई एम नॉट श्योर, अब्रॉड में होता है, आई एम नॉट श्योर यहाँ होता है कि नहीं, लेकिन एक पर्टिकुलर हाइट, अच्छा तो यहाँ सर इमेजिका में है, करेक्ट, तो एक पर्टिकुलर हाइट के बच्चे ही लिफ्ट में घुस सकते हैं। तो ये एक्चुअली फीचर लिफ्ट के बाहर है, वी कैन पुट समथिंग आउटसाइड द डोर, तो बच्चे को अंदर जाने का मौका ही नहीं मिलेगा, वो सेंस करेगा कि देयर इज अ चाइल्ड ये पर्टिकुलर हाइट का, और ये इमीडिएटली कनेक्ट होगा टू द सीसीटीवी कैमरा टू द वॉचमैन, तो कोई इमीडिएटली आके फिर रोक सकता है। ये एक आई वाज थिंकिंग इफ इट इज पॉसिबल। यस मैम, थैंक यू फॉर योर एडवाइस मैम। मिस्टर अजय पोपट, मोहम्मद साहब लगभग 9:30 हो गए, वी हैव टू कंक्लूड। यस, आपके तरफ से कुछ कंक्लूडिंग वर्ड्स है बिफोर आई इनवाइट फातिमा मैम टू एड्रेस आवर शो? मैं यही कहूँगा कि आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर गिविंग देयर वैल्यूएबल सजेशंस, and we will definitely see that we'll try to include most of them in our petition. We will do so, sir. हमारे फ्रेंड्स लोगों ने जो सुझाव दिए हुए हैं, they have trusted us, they have come here to give us suggestions, and if we do not incorporate them in our petition, it would be improper to do so. Absolutely. Okay. Fatima ma'am, are you there? Yes, sir, very much there. Okay. A few words before we conclude today's session, ma'am. Yes, sir, sure, sir. Sir, quite a lot of points has been added today on the safety measures. It's just a question of we putting it forward and then those things being implemented in the interest of everybody rather, and in to save valuable life. That is more important. The main intention of this exercise is that human life is more precious than anything. Madam, मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ. I will extend this session for another 5-6 minutes. मोहम्मद साहब आपसे भी पूछ रहा हूँ, श्रेयसी मैडम आपसे भी, फातिमा मैम आपसे भी, वगैरह वगैरह. हमारे कुछ फ्रेंड्स ने ये बताया कि सोसाइटी के पास बजट नहीं है, सोसाइटी वाले सबसे लोवेस्ट कोटेशन लाने का देखते हैं, वगैरह वगैरह. तो ये क्या फिनोमेना है, कोई डिस्क्राइब कर सकता है इस चीज को, ये ऐसे क्यों होता है? और वही सेम फंड्स आप वही सेम अमाउंट बाहर जाके अंधाधुंध यूज कर रहे हो. जैसे उदाहरण के तौर पे एक 7 साल पहले पेट्रोल करीबन 55 रुपए लीटर था, आज 110 रुपए लीटर भी आप यूज कर रहे हो, फिर भी आप आउटिंग भी जाते हो, फिर भी रेस्टोरेंट्स भी जाते हो ऐसे माहौल पे भी. और you have a good 20-inch TV or 21-inch TV जो भी है, और you pride yourself कि भाई 1 लाख रुपए खर्चा करके हम 60 इंच का टीवी लेंगे या 50 इंच का जो भी लेंगे. तो सर फंड्स तो है ना आपके पास में? सर एक्चुअली क्या है कि मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा कि ये हमारी टेंडेंसी है, इट्स ह्यूमन टेंडेंसी, कि जब हम भाजी तरकारी लेने जाते हैं तो हम 2 रुपये के लिए हम बार्गेन करते हैं, और उसी तरह जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं या हम किसी बार्बर शॉप में जाते हैं तो 150 रुपये हम टिप दे देते हैं. तो जहाँ तक लिफ्ट की बात आती है तो ये एक बहुत अहम और ज़रूरी चीज़ है, और ये इट विल सेव ह्यूमन लाइफ. तो आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि कौन सी चीज है जो आपको एकदम जरूरी है, जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता है, और वहां पे अगर आप थोड़ी भी कंजूसी करेंगे तो ये घातक हो सकता है. तो मेरे ख्याल से इट शुड बी अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन
एंड पीपल शुड थिंक इन अ पॉजिटिव मैनर के सर्टेन चीजों में अगर 2 पैसे भी जाते हैं तो इट विल इंश्योर दैट ह्यूमन लाइफ इज सेव्ड एंड योर सेफ्टी इज इंश्योर्ड. ओके, अभी किसी कारणवश मानो ये जो ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस है कई लोगों ने नहीं लगाया हुआ है, अगर ये कानून बन जाता है कि ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस मैंडेटरी है और नहीं लगाने पे 50,000 रुपीज एंड 1 मंथ का इम्प्रिजनमेंट है. जैसे मैंने अभी वो मोटर व्हीकल्स एक्ट का बताया कि बापूजी की कार है, बेटी जी ने यूज किया, एक्सीडेंट कर दिया, लेकिन एमवी एक्ट में स्पेशल प्रोविजन दिया है कि बापूजी के भी उठा के लेकर जाओ और उसको भी बंद करो. ठीक है, ये कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ, गूगल कर लीजिए, इंसिडेंसेस मिल जाएंगे. अगर ये एआरडी नहीं लगाया, मैंडेटरी कर दिया, 50,000 रुपए फाइन, और नहीं बोल रहा हूँ एंड बोल रहा हूँ, 50,000 रुपीज फाइन एंड 1 मंथ इम्प्रिजनमेंट. अगर ये कानून पास हो जाता है, सोसाइटी वाले क्या करेंगे, क्या बोलेंगे? मैं 1 महीने के लिए अंदर भी चला जाऊंगा, 50,000 रुपए भी दे दूंगा, लेकिन एआरडी नहीं लगाऊंगा. क्या ऐसा हो सकता है? हेमंत जी, एक्चुअली क्या है, एआरडी को तो उन्होंने मैंडेटरी किया था, बट ये बोल के किया था कि भाई अब से जो लिफ्ट्स, नए लिफ्ट्स आएंगे उसमें ये मैंडेटरी होगा. बट जहां तक पुराने लिफ्ट्स का सवाल है तो मेरे ख्याल से वी नीड टू रीथिंक अबाउट दिस. और जो आप सजेस्ट कर रहे हैं इट्स वेरी वैलिड, और मेरे ख्याल से ये हमें अपने पिटीशन में इंक्लूड करेंगे तो इट विल बी वेरी गुड. Why are we saying that पुराने लिफ्ट में मैंडेटरी नहीं किया उन्होंने? For what reason? पुराने लिफ्ट में क्या भेड़ बकरी चढ़ने वाले हैं या इंसान ही चढ़ने वाले हैं? नहीं, उसमें कैसा है कि जब वो अपग्रेड करेंगे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट इज गोइंग टू बी मैंडेटरी. Sir, my question is, in the lift, new lift, ARD is mandatory because human people are going to be traveling in that. Right. In the old lift, is it something different? No, it is the same. No. Human lift, humans are only going to travel. पुराने लिफ्ट में ARD फिट हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये हमने इंजीनियरों से कंफर्म किया, बोलते परफेक्टली हो सकता है. हो सकता है. No problems at all. So why did not make it mandatory and why there was no corrosive action? जैसे मैंने बताया 50,000 रुपया या 1 लाख रुपया प्लस इम्प्रिजनमेंट. इम्प्रिजनमेंट इज नेसेसरी. जैसे ये एमवी एक्ट में कैसे किया, इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन डाल दिया, इसमें क्यों नहीं डाल सकते? और हम क्यों नहीं प्रेस कर सकते इस चीज में? नहीं, बिल्कुल हमें प्रेस इम्प्रिजनमेंट का कर दिया तो क्या आप ये बोल पाओगे कि नहीं साहब मेरे पास तो पैसा नहीं है, बजट ज्यादा है, ये है वो है, हम नहीं डालेंगे? कैन वी से दैट देन? नो, आई थिंक सो. आप जो बोल रहे हैं वी शुड प्रेस इन दिस पिटीशन कि ये लागू करना चाहिए और पूरे तरीके से, संपूर्ण तरीके से करना चाहिए. Okay. So similarly, some safety features which we discussed should be made mandatory, not alternatively or compulsory. I say mandatory, followed with proper corrosive action with penalty along with imprisonment. तो ये कुछ चीजें ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी. सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन. आप सबसे निवेदन है कि अगले सेशन में भी आप ज्वाइन करिए. इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. नाउ विद द परमिशन ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट फ्रेंड्स, वी विल कंक्लूड टुडेज वेबिनार. Thank you all for attending this knowledge sharing webinar. Wishing all friends a healthy and peaceful life forward. Thank you and bye-bye.